Yes. Okay, before we start for the day, we'll continue our topic where we left off. Anybody has any question? Practice. If you guys start practicing, then you'll have questions, right? And that's what I'm asking everyone to do that. So it's fine. I mean, you can, whenever you do that, you'll have a lot of questions, but that might be, too little, too late. So the sooner you do, the better it would be. So far वैसे भी we are going through all the basics. So अगर किसी को आता भी है तो किसी को मतलब आईटी थोड़ा बहुत पता भी है या किया है पास में तो they might find it easy to understand grasp. So that's why मैं भी ज्यादा मतलब नहीं कर रहा हूँ. And like I like said, okay, किसी की parenting we won't be doing the parenting. We're just going to uh, push the people who are willing to make the difference or they wanna go somewhere. ठीक है, तो let's straight jump back to the topic for the day. So we'll continue from where we left off yesterday. That was understanding the installation, the package installation, how it works on Linux. So I might be performing the steps on one particular operating system, but तुम सब लोग को मैं conceptually समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. तो प्लीज अंडरस्टैंड इट कंसेप्चुअली और उसके बाद में जो स्टेप्स है ना उसको मत रट्टा मार लो या दिमाग में बिठा लो बिकॉज द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट आई एम यूजिंग राइट नाउ इज उबंटू और व्हाइल इट्स वेरी गुड फॉर लर्निंग पर्पस, एजुकेशन पर्पस, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, मतलब ज्यादातर जो इंस्टीट्यूट्स रहती हैं विच आर जो एंटरप्राइज नहीं रहती है वो बोल सकते हैं जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक दैट because it's a multi-purpose operating system and can do a lot of things. But the organizations, when you work for a company, chances are very high, maybe 90% of the time you will come across operating system that is Red Hat, right? I have not worked with, I mean, I have worked with few open startup projects, but most of the stable projects that are there in industry, they are all using Red Hat because, Red Hat is the brand, it has support. So that's why you have to understand it from the conceptual point of view. Otherwise यहाँ पे step, because when I do the practical, the lab, एक step follow करूँगा मैं और वो steps तुम दिमाग में बिठा लोगे कि हाँ चलो ऐसा करना रहता है, then you won't be able to do that because that is the difference we have between the different flavors of Linux operating system. And same if you were to do that on Windows as well, you'll have to have the understanding, the approach going to be the same, but the steps will change. तो वो steps जो steps को ज़्यादा मतलब सब steps ठीक है, you can always go on the internet and find out the steps, right? सारे के सारे steps internet पे available है. सिर्फ तुमको conceptually समझना है because वहाँ पर भी समझाया जा रहा है लेकिन वो थोड़ा सा जो language है you may or may not understand that. तो इसलिए तुमको यहाँ पे थोड़ी ऐसी लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो तुम ज्यादा क्विकली समझ सकते हो. एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर तुम लोग इफ यू गाइस आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देन यू शुड हैव क्वेश्चंस, यू शुड हैव कंफ्यूजन्स, तो पूछो, ठीक है. तो दो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो मेजर ये है मतलब जो मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज द डेबियन वाले हैं और रेड हैट वाले. तो रेड हैट वाले मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं. दीज आर द वंस, मोस्ट ऑफ द कंपनीज में वही यूज होंगे, रेड हैट ही यूज होगा. कुछ कुछ कंपनी जो पैसे बचाने का करती है तो क्योंकि रेड हैट एंड सेंटोस सेम सेम है तो वो लोग क्या करते हैं अपना पूरा डेव इन्वायरमेंट इस पे बना लेंगे सेंटोस में और पूरा प्रोड और क्यूए इन्वायरमेंट इस पे बना, क्योंकि वो लोग लाइसेंस का पैसा बचा लेते हैं डेव इन्वायरमेंट में. क्योंकि डेव पे ठीक है अगर कुछ कुछ भी मतलब फटता है या मतलब कुछ ब्रेक होता है, क्रैश होता है तो वी कैन अफोर्ड कि हाँ ठीक है चलो कल देखेंगे. तो डेव इन्वायरमेंट है यहाँ पे तो डेवलपर ही काम करने वाले. डेव इन्वायरमेंट कभी भी तुम्हारे इसको नहीं जाता, मतलब कंपनी बेयर मिनिमम कितनी भी गरीब कंपनी हो तो एटलीस्ट उसने दो इन्वायरमेंट बनाना चाहिए जो कि एक उसका प्लेग्राउंड जैसा रहेगा डेवलपर्स के लिए या फिर एक डेव रहना चाहिए, क्यूए रहना चाहिए. कंपनी में अलग अलग टीम रहती है और अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है. तो बेयर मिनिमम डेव रहना चाहिए
कुछ कुछ जगह पे तो प्रॉड में ही सब कुछ करते रहते हैं, तो वो खतरों के खिलाड़ी जैसे हैं कि प्रॉड में ही सीधा डेवलपर को भी काम कराओ और प्रॉड में ही उनके कस्टमर भी बैठे हुए हैं। तो कस्टमर डायरेक्टली दे आर यहाँ पे प्रॉड इन्वायरमेंट में से जो भी उनकी एप्लीकेशन रहती है या जो भी रहेगा, तो एवरीथिंग विल बी हियर डेटाबेस। दे हैव टू प्रीटी मच रेप्लिकेट। उससे साइज छोटा कर सकते हैं वो लोग, इंस्टेड ऑफ लाइक अगर ये लोग मल्टीपल सर्विसेज रन कर रहे हैं तो प्रॉड में क्या होगा, आइसोलेशन आएगा। तो डेटाबेस एक सर्वर पे रन होगा, एप्लीकेशन एक सर्वर पे रन होगा, बिजनेस लॉजिक एक सर्वर पे रन होगा, कोई और सर्विस होगी तो वो भी उसको सबको एक अलग अलग सर्वर्स पे रन किया जाएगा। डेव में यू मे वांट टू कंबाइन एवरीथिंग, एक ही सर्वर पे सब कुछ कंबाइन कर दो, बट सेम सेम, बिकॉज जब कुछ भी नया फीचर लाना पड़ता है या फिर कोई यूजर रिपोर्ट करता है तो डेवलपर यहाँ पे रिपोर्ट बग करेगा सॉरी बग को बग पे काम करेगा। तो डेवऑप्स का जो वो आर्ट जो बना हुआ रहता है ऐसा, तो इसमें तुम देखोगे कि यहाँ से डेवलपमेंट स्टार्ट होता है और फिर ये घुमा फिरा के वहीं पे आ जाता है। तो तो डेवलपर जब भी काम करेगा तो डेव पे रहता है। तो अलग अलग इन्वायरमेंट्स रहते हैं, डेव, क्यूए, प्रॉड, प्री प्रॉड, स्टेज एंड फिर यूएटी भी रहेगा जहाँ पे टेस्टिंग होती है। तो उन इन्वायरमेंट में वही होता है कि अलग अलग लेवल पे काम होगा। तो ज्यादा सुना होगा यूएटी वगैरह के अलग अलग लेवल की टेस्टिंग होती है ना, तो कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग लेवल का इन्वायरमेंट ही बना देते हैं, कुछ कुछ एक ही पे करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इट्स बेस्ड ऑन कितनी क्रिटिकल एप्लीकेशंस दे आर रनिंग एंड व्हाट दे कैन अफोर्ड एज वेल। बट बेयर मिनिमम ऐसा रहना चाहिए। आई हैव एक्चुअली सीन पीपल आर जस्ट एक ही इन्वायरमेंट अब्रॉड, उसी में सब कुछ किया जा रहा है। तो यहाँ पर करोगे कुछ भी, डेवलपर यहाँ पे डायरेक्ट करेगा फंक्शनैलिटी टेस्टिंग, तो ये तो आग से खेलने जैसा हो गया, मतलब ये प्लेइंग विद द फायर। और सबको मतलब तुम आग लगा दोगे, फिर ऐसा है प्रॉड में डायरेक्ट नहीं करना चाहिए। तो दैट्स व्हाट नॉर्मली वो लोग क्या करेंगे, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में डेव को सेंटोस पे कर देंगे और इसको सारे जो रहेंगे ये रेल पे रहेंगे, क्योंकि दोनों सेम सेम काम करते हैं। और यहाँ पे लाइसेंस का फीस नहीं है अपने पास में, लाइसेंस नहीं है तो सपोर्ट भी नहीं है। यहाँ पे जो सपोर्ट रहेगा वो पूरा कम्युनिटी का रहेगा, यहाँ पे प्रोफेशनल सपोर्ट है अपने पास। यस असलम, यू हैव अ क्वेश्चन? Yes, Shahzad, as you said that everything will be going into production where people are working on in everyone is working on the same page there. So, are there any chances of security breach or something like that? यस आई मीन एवरीबडी इज, ऐसा है कि जितने भी अपने काम करने वाले रहेंगे दे एंड देन दे, तो क्या होगा, यहाँ पे डेव रहेगा, बीच में क्यूए भी आता है। तो सिक्योरिटी का चांस है, मतलब नोबडी कैन हियर, लाइक अभी मैंने एसएसएच किया राइट, तो अगर मैं किसी डेव सर्वर पे लॉग इन हूँ, आई कैन नॉट कनेक्ट हियर बिकॉज एक ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में कैसा, दो सिक्योरिटी नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे हम लोग, तो देर आर नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस में दो सिक्योरिटी जोन बना देते हैं हम लोग, एक प्रॉड और एक नॉन प्रॉड, ऐसे दो सिक्योरिटी जोन रहेंगे। और तुम्हारा यहाँ पे प्रॉड में ज्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ प्रॉड इन्वायरमेंट ही रहेंगे हर एप्लीकेशन का। सो यहाँ पे सारे प्रॉड इन्वायरमेंट्स यू कैन होस्ट, while you can have here a dev, QA, UAT, प्री प्रॉड, स्टेजिंग, जितने भी इन्वायरमेंट है सारे यहाँ पे आएंगे। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू है ये, सॉरी नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू वो लोग एक ये बना देते, तो कनेक्टिविटी ही अलाउड नहीं रहती है बिटवीन, ये सिक्योरिटी जोन रहेगा। This is and something managed by networking team or as a part of DevOps, हमको अंडरस्टैंडिंग चाहिए बिकॉज ये रहेगा मतलब नॉन प्रॉड जोन एंड दिस कैन बी प्रॉड जोन, ज्यादातर ये रहेगा। एंड देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्टिविटी बिटवीन प्रॉड टू नॉन प्रॉड, मतलब यहाँ से यहाँ कनेक्टिविटी ही नहीं रहती है, तो कोई कनेक्ट ही नहीं कर सकेगा यहाँ पर। और और भी जोन बना सकते हैं, मतलब और तो कनेक्टिविटी ब्लॉक रहती है फ्रॉम डेव टू प्रॉड, नोबडी कैन कनेक्ट, एंड समटाइम्स फ्रॉम डेव टू क्यूए आल्सो नोबडी कैन कनेक्ट, क्योंकि क्यूए के लिए दूसरी टीम है जो क्यूए पे काम करने वाली है, यहाँ पे डेवलपर काम करते हैं। क्यूए पे जो टेस्टर्स रहते हैं जो टेस्टिंग करते हैं अगर हमारे पास क्यूए इन्वायरमेंट है तो सारे टेस्टर यहाँ पे काम करेंगे। तो टेस्टर्स को इसके फायरवॉल पे यहाँ पे एक्सेस दिया हुआ है, यहाँ पे एसएसएच का एक्सेस दिया, आरडीपी का एक्सेस दिया, दे कैन लॉग इन देयर, उनको फायरवॉल ब्लॉक नहीं करेगा। तो दे हैव द फायरवॉल ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन इस सर्वर पे। प्रॉड पे कौन रहता है, ऑपरेशन वाले लोग रहते हैं, मतलब काम करने के लिए।
ऑपरेशन प्रोड पे कनेक्ट करते हैं हमारे यूज करने इसके जो कंज्यूमर्स है दैट आर एंड यूजर, हमारे जो भी एंड यूजर रहेंगे बेस्ट कौन सी एप्लीकेशन है। लाइक अगर हम लोग अमेजोन की बात करते हैं तो अमेजोन जो साइट है, म्यूट कर लो प्लीज। तो अमेजोन की जो हमारी वेबसाइट है दैट इज हम लोग उसके एंड यूजर हैं, हम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन अमेजोन की इंटरनल टीम होगी जो मॉनिटर कर रही है उसको, उसके पास में एक ऑपरेशन की टीम होगी। तो ऑपरेशन सस्टेनेंस सपोर्ट जो भी रहता है फ्रॉड पे। Sadia, can you mute? I mean, are you even paying attention? Because I've seen this from yesterday. It looks like you just joined the call and you don't know what's going on. Okay, so जो ऑपरेशन सस्टेनेंस सपोर्ट जो ऑप्स रहते हैं राइट, तो ज्यादातर एडमिन्स मतलब जो भी रहते हैं इनको एडमिन्स ही है, ये सब अलग अलग इससे बोला जाता है। तो क्यूए में भी मतलब बेस्ड ऑन कौन सी टेस्टिंग कर रहे हैं उसके से, डेवलपर में भी इतने सारे डेवलपर्स हैं, फुल स्टैक बैक एंड फ्रंट एंड स्क्वायर और क्या क्या है उनके भी अलग अलग नाम चलते हैं। तो इट्स एवरीवेयर इट्स द स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, सब जगह पे कंफ्यूजन ही चल रहा है जिनको नहीं पता रहता, बट इट्स जस्ट अ फैंसी वे ऑफ कॉलिंग देमसेल्फ। ठीक है, तो फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू दीज आर जस्ट गोइंग टू बी अ डेव एंड मतलब डेवलपर्स एंड टेस्टर्स। जो कीवे इसलिए लिखा जाता है क्योंकि उसको क्वालिटी अश्योरेंस बोला जाता है। जो भी एप्लीकेशन की क्वालिटी है उसको अश्योर किया जा रहा है, मतलब उसको गारंटी दी जा रही है, तो दैट्स व्हाट क्यूए लिखा जाता है। तो क्यूए और क्यूटीवाई लिखा जाता है क्वालिटी के लिए जस्ट तो इट कैन बी कुछ भी एक एब्रिविएशन हो सकता है। तो फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू देयर इज नो कनेक्टिविटी, ओनली दीज ग्रुप ऑफ पीपल लाइक डेवलपर्स को ही कनेक्टिविटी यहाँ पर मिलेगी, टेस्टर्स को यहाँ पर मिलेगी, एंड ऑपरेशन जो एडमिन्स हैं ठीक है उनको यहाँ पर मिलेगी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम एडमिन्स दे डोंट नो कि क्या चलता किधर है यहाँ पर, और ज्यादातर ऑपरेशंस एडमिन्स को नहीं पता रहता बिजनेस का जो लॉजिक है क्या है। उनको बस ऐसा रहता है कि भाई जैसे इट्स एडमिन्स का एडमिन्स लाइफ इज सेम एज जो सिक्योरिटी गार्ड रहता है किसी के सोसाइटी के बाहर, उसको पता नहीं रहता अंदर में क्या चल रहा है, वो बस गेट कीपर के जैसा बस ये करते रहता है। तो वैसे ही ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम रहता है, और इसलिए डेवऑप्स में सबसे पहली चीज बताई जाती है कि ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है जिनको एकदम से गिरा हुआ माना जाता है, इनको पहले सिटीजनशिप दे दो, ए ग्रेड सिटीजनशिप दो। डेवलपर को ए ग्रेड रहती है, क्यूए को भी ए ग्रेड रहती है, और ऑपरेशंस को हमेशा निचले दर्जे पे माना जाता है। इनको 24/7 की शिफ्ट में रखा जाता है कि हाँ तुम लोग 24 घंटे आगे काम करना। तो डेवऑप्स में सब में पहला जो चीज बताई जाती है कि तुम्हारे ऑपरेशंस पीपल आल्सो मैटर्स। ये ऐसा हो जाता है कि मजदूर काम कर रहे तो मजदूर को वैल्यू नहीं दी जाती है, बट दे आर द वन एक्चुअली रनिंग द होल ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो वैसे ही हाल यहाँ पर है, बिकॉज दे आर द वन 24/7 डूइंग द मॉनिटरिंग ऑफ द एप्लीकेशन और एक्चुअली द प्रोडक्शन एप्लीकेशन। ऐसा भी नहीं कि डेव को मॉनिटर कर रहे हैं लोग, ये प्रॉड को करते हैं, बट इनकी जो वैल्यू डेवलपर्स को, द वे डेवलपर्स लुक अपन देम, द क्यूए लुक्स अपन, उनको ऐसा लगता है ऐसा ये सेम एज के कोई आर्ट्स में है और ये लोग सारे मतलब साइंस में है, तो साइंस वाले आर्ट्स को कैसा देखते हैं कि अरे ये तो ये है करके। तो वैसी ही लाइफ है, एंड एक्चुअली दैट इज ट्रू एज वेल बिकॉज पीपल हियर आर नॉट कमिंग फ्रॉम द कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड। यू डोंट नीड टू हैव अ कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, एंड इसलिए हम लोग भी यहीं पे जा रहे हैं। And that's what I said. IT, non-IT, everybody can do that because you don't need computer science background to be here. But to be on these, you do need that. क्योंकि I mean that's normally useful because तुमको जो actually programming के complexity है that's something जो तुम यहाँ पे encounter करोगे. So you wanna have a background to easy do अपने आप को मतलब आसान करने के लिए। अगर तुम्हारा background नहीं है तो you gonna find programming very difficult. ठीक है, और क्यूए में भी वही है, बंच ऑफ कोड्स हैं। अब तो डेवऑप्स आने की वजह से ऐसा हुआ है कि यहाँ पर भी हमको कोड ही करना पड़ता है, बट इनका कोड और हमारा कोड जो मैं कल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो ये है, आई थिंक मैंने बताया था राइट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमने देखी थी, वो उस पर हम काम नहीं करेंगे। हमारा जो रहेगा टूल्स टेम्पलेटिंग एंड स्क्रिप्टिंग रहेगा प्रोसीजरल लैंग्वेज में। और बिकॉज इंडस्ट्री में भी पता है कि दिस ग्रुप ऑफ पीपल दे आर नॉट वेरी गुड विद द प्रोग्रामिंग, वो मतलब भागते रहते हैं, तो इसके लिए इनके लिए कुछ स्पेशल वे में बनाया जाए। तो इसको भी ऑटोमेट किया गया बिकॉज दैट वाज द ओनली एरिया
जहाँ पे ऑटोमेशन नहीं था, और बाकी सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो चीजें होती है सब ऑटोमेट से हो रहा है क्लाउड आने की वजह से, सब एपीआई ड्रिवन है। अब एपीआई आ गया है तो यू कैन राइट ऑल सॉर्ट्स ऑफ ऑटोमेशन, बिकॉज basically you can write any program you want to automate operations of these group of people. तो डेवऑप्स में ये है, एंड टॉकिंग डेवऑप्स में मतलब इसको एलिवेट किया गया है, जो कि बिफोर डेवऑप्स इसको अभी भी मतलब, बिकॉज दैट इज डेवऑप्स इज अ कल्चरल चेंज, इट्स नॉट अ टेक्नोलॉजी, वो सिर्फ एक मेथड है, एक कल्चर है कि ऐसा ऐसा काम करना है, तुमने इन तीनों को कंबाइन करके काम करना है। तो that organizations taking time to adopt as well, so that will take time, but that is the access point of view कि किसको कहाँ पे कितना एक्सेस दिया जाएगा, डेवलपर को कहाँ पे कितना एक्सेस रहेगा, और क्यूए को क्या। तो एक ऐसा प्रॉड नॉन प्रॉड रहेगा जिसमें तुम्हारा सैंडबॉक्स के लिए मे बी उसको भी यहाँ से भी अलग कर दिया जाएगा। सैंडबॉक्स एक इन्वायरमेंट, कुछ कुछ कंपनी जो बड़ी रहेगी तो वो सैंडबॉक्स भी बनाएगी कि जाओ वहाँ पे पीओसी करो, प्लेग्राउंड है, मतलब गिनी वो तुम्हारा ऐसा जहाँ पे ऐसा है कि कुछ भी नहीं है तो वहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। तो सैंडबॉक्स रहेगा, डेव रहेगा, क्यूए रहेगा, ये अलग अलग फैंसी नाम्स हैं, ठीक है। प्री प्रॉड रहेगा, स्टेज रहेगा, ऐसा, एंड देन यू गोना हैव अ प्रॉड हियर। तो नॉन प्रॉड और प्रॉड जोन में कनेक्टिविटी नहीं रहेगा अगर इफ यू आर पुटिंग एवरीथिंग इन अ नॉन प्रॉड। सैंडबॉक्स को एक्चुअली ना बाहर रखा जाता है, सैंडबॉक्स इज नॉट पार्ट ऑफ, ज्यादातर द होल पर्पस ही वही रहता है। इसको ना इस जो नॉन प्रॉड नेटवर्क से भी बाहर रखो, उसके लिए एक अलग ही नेटवर्क बनाओ जो हम लोग वी कैन डू लाइक इंटरनेट से एक्सपोज कर सकते हैं। जनरली तुम्हारे कंपनी में लाइक अभी मैंने जो इस सर्वर को कनेक्ट किया हूँ, दिस सर्वर जो मैंने कनेक्ट किया है, ठीक है, ये सर्वर जो मैंने यहाँ पे बनाया जीसीपी पे, और अगेन मैंने समझाया था कि पब्लिक आईपी लगा हुआ है उसको, बट इन रियलिटी यू विल नॉट हैव अ सर्वर जिसको पब्लिक आईपी लगा हुआ रहेगा, किसी को पब्लिक आईपी नहीं लगा हुआ रहेगा, सब प्राइवेट आईपी रहता है। तो सैंडबॉक्स में यू कैन डू दैट, जो अभी हम लोग कर रहे हैं ना, दैट इज यू कैन थिंक ऑफ कंपेयर दैट विद द सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट। बट बाकी जो डेव क्यूए प्रोड है, दैट मे नॉट बी व्हाट वी आर डूइंग, नॉट डूइंग एटलीस्ट फॉर नाउ। तो सिक्योरिटी में कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ यहाँ से रहेगा, एक्सेस पॉइंट ऑफ ए ग्रुप्स रहेगा, एंड दैट्स व्हाट गोइंग टू डू दैट। और इसमें क्या होता है कि ब्रांचिंग स्ट्रैटेजी होती है कि अब डेवलपर ने लिख दिया है तो क्यूए को कैसा मिलेगा कोड। तो डेवऑप्स में पूरा ऑटोमेट किया गया है, और गिट देखेंगे ना तो विल सी दैट ब्रांचिंग स्ट्रैटेजी एज वेल। एंड दिस इज, ये सब सारे ऐसे क्वेश्चन है ना इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। इंटरव्यू में तुमको पूछा जाएगा कि गिट ब्रांचिंग स्ट्रैटेजी क्या है, तुमने ब्रांचिंग स्ट्रैटेजी किया है क्या। क्योंकि अब डेवऑप्स का ऐसा हुआ है कि डेवऑप्स को ऐसा बोला जा रहा है कि अब ये ए ग्रेड सिटीजन हो गया है, तो ये भी इनके डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करेगा। जब डेवलपर कुछ बातें करेंगे तो दिस पीपल आर आल्सो देयर। प्रीवियसली ऐसा था क्यूए और डेवलपर की अपनी मीटिंग चल रही है, सपोर्ट वाले जो है वहाँ पे एडमिन्स अपने साइड में बेचारे बैठे रहते हैं, 24/7 की शिफ्ट कर रहे हैं, वो एक आ रहा है हैंड ओवर ले रहा है जा रहा है, दूसरा आ रहा है हैंड ओवर ले रहा है जा रहा है, और ये डेव क्यूए के स्टैंड अप्स हो रहे हैं, इनके डेली ये होते उनके डेली स्टैंड अप्स हो रहे हैं, अपडेट शेयर हो रहा है, बट ऑपरेशंस को नहीं इन्वॉल्व किया जा रहा है उसके अंदर। तो अब ऑपरेशन सपोर्ट जो एडमिन टीम है उसको भी इन्वॉल्व किया जाता है। तो इसलिए ये सारे जो चीजें इनको भी पूछा जाता है कि तुम भी बताओ क्या है। तो वो सारे जो, और एक है कि यहाँ से यहाँ ऑल द वे प्रोड कैसा आएगा, तो उसका भी एक मेथड है, उसको भी एक ब्रांचिंग स्ट्रैटेजी रहता है जिससे हम लोग को प्रमोट किया जाता है। इनको बोला जाता है लोअर एनवायरनमेंट, ये लोअर एनवायरनमेंट है, ये उससे हायर है और ये उससे हायर है, तो ये क्या होगा, लोअर एनवायरनमेंट से प्रमोट होते जाएगा हमारा कोड। और ये सारे वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, दीज आर द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड वर्ड, लोअर एनवायरनमेंट, प्रमोट करना। वो लोग क्वेश्चन वही पूछेंगे, हाउ डू यू ऑटोमेटिकली प्रमोट योर कोड टू द हायर एनवायरनमेंट। तो उस टाइम पे तुमको समझना चाहिए कि दे आर एक्चुअली आस्किंग मी कि हम लोग डेव से क्यूए में कोड कैसा लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो दे माइट आस्क यू क्वेश्चन इन दैट वे, तो एट द टाइम तुमको समझ में आना चाहिए। और वो जो दैट समथिंग वी विल अचीव विद द आइडिया ऑफ ब्रांचिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो ब्रांचिंग स्ट्रैटेजी से हम लोग कर लेंगे, एंड गिट में हम लोग देखेंगे, यूज केस भी लेंगे। अभी सिर्फ तुम्हारा क्या करना है, अपने दिमाग में ये जो चीजें मैंने बताई है तुमको, वो चीजें अभी फिट कर लेना, बिकॉज वी आर नॉट ऑन दैट टॉपिक, वी आर स्टिल ऑन द अर्ली डेज, और हम लोग वो टॉपिक पे आगे बढ़ आगे जाएंगे, ठीक है। तो दैट्स सिक्योरिटी, ये लेवल की जो सिक्योरिटी है इनिशियल लेवल की, वो सारी यहाँ पर आ गई, एंड फायरवॉल एंड ऑथेंटिकेशन, ऑथेन एंड ऑथजी, जो मैं बार बार बताते रहता हूँ कि नेचुरली तुम्हारे दिमाग में लाना चाहिए तुम्हें। ऑथ एन लिखा जाता है इसको, एंड ऑथ जी लिखा जाता है इसको।
तो ऑथेंटिकेशन बिकॉज उसमें एन है, ऑथराइजेशन इसमें जी है कहीं पे बीच में, तो इस तरीके से डिफरेंशिएट किया जाता है। तो ऑथेन एंड ऑथ जी एंड फायरवॉल्स, 3 लेवल की सिक्योरिटी यहाँ पे लगा दी जाती है जोन के हिसाब से। अलग अलग सिक्योरिटी जोन बनाएंगे, प्रॉड और नॉन प्रॉड को कनेक्टिविटी कभी रहेगा ही नहीं, यहाँ पे भी मैंने प्रॉड लिख दिया। ओके, सो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, ठीक है असलम, still saw your hand, so I thought. So Debian and ये हमने इसके tools देखे थे। Debian में the first thing we can do in anything is to install it from the source code. Source code में हमने देखा कि क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। मैं थोड़ा इसको इधर ले लेता हूँ, so we get a more space. So the first जो हम लोग कर सकते हैं, जो what people used to do back in the day is using source code. Source code में तुम्हारा जो स्टेजेस है वो वही मतलब सोर्स कोड के जो स्टेजेस क्या होंगे, तुमको डाउनलोड करना है जो भी सोर्स कोड है, मतलब बेसिकली पूरा सी का कोड डाउनलोड करने की मेथड है। यू इधर जस्ट गिट से क्लोन कर लो या फिर उसको जिप करके लेकर आ जाओ। तो फर्स्ट यू हैव टू डाउनलोड द सोर्स कोड। अब वो डाउनलोड तुम्हारा कुछ भी मेथड में हो सकता है, तुम एज अ जिप जो भी कंप्रेस्ड लेकर आओ, या डायरेक्ट सोर्स कोड ही लेकर आ जाओ, सोर्स ही मतलब गिट से डाउनलोड कर। ये इससे इससे कर सकते हो, ये wget और कर्ल से कर सकते हो, और तुम एससीपी से भी कर सकते हो। राइट, हम लोग अभी तक हमने एससीपी ज्यादा देखा भी नहीं है, बट एससीपी इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। जस्ट सीपी कमांड का ही एससीपी रहता है। सीपी कमांड में हम लोग सीपी में एमवी में सारे कमांड ऐसे हैं कि उनको एक सोर्स चाहिए, एक डेस्टिनेशन चाहिए। तो एससीपी कमांड में ऐसा होता है कि हमारा सोर्स या डेस्टिनेशन रिमोट सर्वर रहेगा, राइट, जब भी हम लोग कनेक्ट करते हैं। मैं एक दो दिखा दूंगा तुमको करके। तो डाउनलोड करना है, उसके बाद में उसको कंपाइल करना है। तो कंपाइल एंड एक्सट्रैक्ट एंड कंपाइल, एक्सट्रैक्ट यहाँ पे ऑप्शनल रहेगा बेस्ड ऑन तुमने कौन सा मेथड ये किया। अगर तुमने डायरेक्ट सोर्स को डाउनलोड किया है तो तुमको एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यू ऑलरेडी हैव इट एक्सट्रैक्टेड। उसके बाद में उसको कंपाइल करना है। तो कंपाइल करने के लिए मतलब डिपेंडेंसी, इसको डिपेंडेंसी ये करना है, दैट समथिंग वी कैन डू इट बाय रनिंग कॉन्फ़िगर स्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये आ जाएगा। उसके बाद में उसको मेक कमांड से कंपाइल करना है और मेक कमांड से इंस्टॉल कर देना है। तो ये मेक कमांड यहाँ पे उसको कंपाइल करना है, मेक कमांड से। तो कॉन्फ़िगर जो है एक शेल स्क्रिप्ट है। मेक कैसा होगा, इसके लिए एक मेक फाइल है जो जिसमें पूरा इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि किस तरह से उसको कंपाइल करना है। और उसके बाद में एक बार उसकी बाइनरी आ जाती है तो हम लोग सीधा मेक इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इससे जो भी बना हुआ रहता है वो यहाँ पे आ जाएगा। मेक इंस्टॉल हम लोग कर सकते हैं एंड देन वी हैव आवरसेल्फ। तो ये हाई लेवल स्टेप्स ऐसे हैं, राइट, इट्स नॉट अ बिग डील। मतलब तुम्हारे पास में द ओनली इशू यू कैन रन इज हियर डिपेंडेंसी। अगर इसके अंदर में कुछ डिपेंडेंसी कवर नहीं की गई है एंड दैट इज मिसिंग, जो हमारे केस में कल हुआ था, वी वर मिसिंग द कंपाइलर्स। जो हमको कंपाइलर चाहिए थे, वो कंपाइलर ही नहीं थे हमारे पास में। तो यहाँ पे वो इसमें मतलब डिपेंडेंसी चेक में, वैलिडेशन में उसने वहीं पे हमको फेल कर दिया था। तो वी नीड दैट एज वेल। अगर क्योंकि सारा सी का है तो सी के सारे कंपाइलर चाहिए, सी के सारे टूल्स चाहिए, जो भी उसको डिपेंडेंसी चाहिए। तो ज्यादातर हर ऑपरेटिंग सिस्टम में मतलब ऐसा एक बिल्ड टूल नाम से है, बिल्ड एसेंशियल, डेव यूटिल ऐसे नाम से दिया हुआ है। यू कैन ऑलवेज फाइंड दैट फ्रॉम द डॉक्यूमेंटेशन व्हेन देयर इज अ नीड फॉर यू टू एक्चुअली डू समथिंग फ्रॉम द सोर्स कोड। तो this is like your last resort when you work with the open source, and you will come across a lot of tools that you may have to install it locally। जहाँ पे तुमको वो लोग बोलेंगे कि जो ये आई एम यूजिंग दिस एप्लीकेशन, और बता देंगे उसका सोर्स कोड का लोकेशन बता देंगे गिटहब का, बोलेंगे ये है। और वहाँ पे कहीं पे भी इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन नहीं दी रहेगी, बिकॉज वो अज्यूम कर रहे हैं कि तुमको पता है। तो तुमको इस तरीके से वो करना पड़ेगा उसको इंस्टॉलेशन। तो देर विल बी लॉट ऑफ मतलब आएंगे जहाँ पे तुमको दिस विल बी अ लास्ट रिजॉर्ट, जब कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो तुमने यहाँ पर आना है। मैं ना इसको इधर में
खींच के गड्ढा खोदने खड़ी हो गई। ओके, अगर क्वेश्चन है तो लाइक हम सेइंग अगेन एंड अगेन, सिंपली रेज योर हैंड, ठीक है। और दूसरा, अब इसका हम लोग बात करते हैं एक्चुअली, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से। दूसरा जो इनका पैकेज मैनेजर रहता है, तो पैकेज मैनेजर जो इसमें है डीपीकेजी है, डेबियन पैकेज मैनेजर, और डेबियन पैकेज सिर्फ ऐसा बोला जा रहा है। And here we have RPM. So in order to work with these people or with these package manager, we can use dpkg as a command, because this is command, मैं जो दोनों बता रहा हूँ ये command भी है, तो I can use this as a command and I can install that. तो इनको installation में इनका जो ये है इंस्टॉलेशन करने का जो हमारा तरीका होगा, ये ना ही तुम्हारा पैकेज डाउनलोड करेगा, नो डाउनलोड, और ना ही ये डिपेंडेंसी तुम्हारा ये करेगा, नो टिप्स। मतलब तुमको क्या करना पड़ेगा, पैकेज जो जैसा विंडोज का सिस्टम है ना कि EXE कोई डाउनलोड नहीं करके देता, तुमको क्या करना पड़ता है, .exe पहले डाउनलोड करके लाना पड़ता है, फिर उसको डबल क्लिक मार के इंस्टॉल करते हैं। सेम वे में वही रहता है यहाँ पे, सिर्फ पैकेज मैनेजर ये है तो तुम कमांड लाइन से कर सकते हो। जो पैकेज तुमको लाने पड़ेंगे .dev लाने पड़ेंगे पैकेज, और यहाँ पर जो तुमको पैकेज लाने पड़ेंगे .rpm के पैकेज लाने पड़ेंगे, ठीक है, इस तरीके से रहेगा। एंड देन यू कैन यूज RPM इंस्टॉल, जो भी उसका कमांड होगा -l या -i फॉर इंस्टॉल, और उसके मैन पेज में हमेशा हम लोग देख सकते हैं। तो योर बेस्ट फ्रेंड इज द मैन पेज, राइट। तो इफ वी कम हियर, अभी मैं डेबियन पर हूँ तो इसलिए मेरा क्या रहेगा, डीपीकेजी रहेगा। अगर तुम किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे हो तो यू शुड नो कि क्या पैकेज मैनेजर है उसका, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पैकेज, द कंसेप्ट इज इम्पोर्टेंट, नॉट द स्टेप्स दैट आई एम डूइंग हियर। Another question, you have another question? Yes, regarding the source code, they are into raw format, and we are turning them into, we're compiling them into artifacts, right? Correct. And then we are installing them, right? Installing it, This is the right, process. yes. Yes, So here yes. here I think we are here, I mean we are compiling it, and भी सोर्स कोड के बाद में जो भी आउटपुट रहेगा आफ्टर कंपाइल, उसको आर्टिफैक्ट बोला जाता है। तो वो तुम्हारा मतलब वही जो कंपाइल एग्जीक्यूटेबल, जिसको हम लोग यहाँ पे फिर अगेन इंस्टॉल कर रहे हैं मेक इंस्टॉल कमांड के साथ में। यस, Okay, and they are stored into repository server, right? That is the यस, artifact जो server. हाँ, तो यहाँ पे हम लोग मेक फाइल बोल रहे हैं ना, तो इफ यू डोंट स्पेसिफाई एनी पाथ, राइट, वो करंट डायरेक्टरी में ही करेगा, जिस डायरेक्टरी में हम, क्योंकि हम लोग सीडी करके इस डायरेक्टरी में आ जाएंगे, एक बार एक्सट्रैक्ट किया तो हम लोग सीडी कर लेंगे ना उस डायरेक्टरी में जहां पर भी एक्सट्रैक्ट हुआ है, तो करंट डायरेक्टरी में ही करते रहेगा वो सब कुछ, अनलेस हम लोग Okay. किसी टारगेट डायरेक्टरी अगर हम उसको देते हैं तो वो कर सकता है। तो इन सब के मैच में रहता है अगर तुमको करना है तो, बट तो टारगेट डायरेक्टरी रहेगा जहाँ पे तुम्हारा आर्टिफैक्ट जाएगा, और उसके बाद से तुम उसको यूज कर सकते हो। जो हम लोग CI/CD करेंगे तब हम लोग उसको कंट्रोल करेंगे, तो क्योंकि अच्छा. एवरी टाइम हम लोग कंपाइल करेंगे तो वो आर्टिफैक्ट को आर्टिफैक्ट सर्वर पे ही रखा जाएगा। तो बहुत सारे सर्वर Okay. लाइक नेक्सिस है, JFrog है, जो चलते हैं ज्यादातर कॉमन, एंड देन CI/CD के ये स्वीटी है, उसमें आता है स्टोरेज। तो कंसेप्चुअली बस समझने का आपको कि जो रॉ कोड रहेगा, एक बार वो कंपाइल हो जाएगा तो आता है आउटपुट, दैट इज कॉल्ड आर्टिफैक्ट। तो आर्टिफैक्ट मतलब रेडी टू डिप्लॉय कोड हो गया, राइट। तो ये रेडी टू इंस्टॉल कोड था, हमने सीधा उसको इंस्टॉल कर दिया यहाँ पर। तो इट्स Okay. हैपनिंग एवरीवेयर। तो डेवलपर्स का कैसा है, डेवलपर्स के लिए डेवलपर्स डेवलप ठीक है, इफ यू आर डन यू कैन म्यूट। अभी मैं वो सिंस वी रेज द टॉपिक, राइट, आई थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो डेवलपर्स का ऐसा है कि दे नो दिस, क्योंकि वो डेवलपमेंट करते आ रहे हैं, तो उनको पता है इन ऑर्डर टू रन अ सिंपल जावा प्रोग्राम एज वेल, तुम लोग भी जाके देख सकते हो, जब तुम लिखोगे एक फाइल में .java करके या सी का भी लिख रहे हो तो पहले उसको कंपाइल करना पड़ता है, फिर जाके इवन हेलो वर्ड भी लिखोगे, एज सिंपल एज छोटा सा हेलो वर्ड रहेगा जिसमें सिर्फ हेलो वर्ड प्रिंट होगा और कुछ भी नहीं होगा उसकी फंक्शनलिटी, उसको भी तुमको कंपाइल करना पड़ता है, फिर एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो डेवलपर्स दे आर लाइक अवेयर, जब भी यहाँ पे बातें चलती है ना कि हाँ ऐसा होगा आर्टिफैक्ट आएगा, तो उनको पता है, बिकॉज देव सीन इट, दे नो। बट एडमिन्स वर्ल्ड में रहता है, दे हैव नॉट सीन दिस, और अभी सडनली दे हैव टू एक्चुअली डू दैट, बिकॉज
CI/CD में क्या है, डेवलपर सिर्फ कोड दे देगा, उसका काम हो गया, उसने उसके लोकल एनवायरनमेंट पे टेस्ट कर लिया या सैंडबॉक्स में टेस्ट कर लिया। अब डेव में भी हमको ही टेस्ट करना है, मतलब हमको टेस्ट करना है, ऐसे हम जाके कमांड रन नहीं करेंगे, बट इन ऑटोमेटेड वे। तो उससे हम लोग बोलेंगे कि भाई तेरा कमांड क्या है, तू चल, तूने पाइथन लिखा है ना, तो पाइथन में बता मैं कैसे करूँ ये सारे स्टेप्स। पाइथन में मतलब कंपाइल कैसा करूँ, उसको टेस्ट कैसा करूँ, डिप्लॉय कैसा करूँ, सारे कमांड वो अपने को दे देगा। अब वो कमांड से हम लोग क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन एज अ कोड लिखेंगे, बिकॉज कॉन्फ़िगरेशन करने का काम किसका रहता है, एडमिन्स का रहता है। अब कॉन्फ़िगरेशन को भी कोड से ही किया जाएगा, विच इज वेरी इजी। मतलब हमारे लिए कॉन्फ़िगरेशन जो भी मैं बोल रहा हूँ ना, तो यहाँ पे देखो तीन चीज ही अपने को सीखना है इन ऑर्डर टू ऑटोमेट एवरीथिंग हियर, दैट इज स्क्रिप्टिंग, टेम्पलेटिंग, एंड जो डेटा सीरियलाइजेशन रहता है, YAML जो इसमें होता है। डेटा मतलब स्टोरेज का रहता है, YAML में करना रहता है बस। ये तीन चीज ही आपने हमको सीखना है हमारे ऑटोमेशन के लिए। कहीं पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का नामो निशाना नहीं है, सिर्फ प्रोसीजर में ही लिखना है, सारे प्रोसीजर लैंग्वेज में जाते हैं, इसमें कुछ भी कहीं पे भी कॉम्प्लेक्स स्टफ नहीं रहता जैसा वहां पे रहेगा। लेकिन एकदम से भी इजी तो नहीं रहने वाला है, तो थोड़ा बहुत तो अपने को अंडरस्टैंडिंग अपनी करनी पड़ेगी। कंपनीज इतने तुमको पे नहीं करेगी जस्ट एकदम इजी चीजें समझने के लिए। तो एकदम डिफिकल्ट भी नहीं है और एकदम इजी भी नहीं है, आई वुड से एक्चुअली। थोड़ा सा भी तुम अगर कोशिश करोगे तो सब कुछ होता है, तुम कोशिश करोगे तो वो भी हो रहा है, बिकॉज इंसान कर रहे हो ना, तो तुम्हारा ऐसा सोचना रहना चाहिए कि अगर इंसान कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, वो भी तो इंसान है, उसमें क्या अलग बात है जो मेरे में नहीं है। तो अपने में अलग बात यह है कि हम मेहनत नहीं करना चाहते, और वो ऐसे हैं कि वो मेहनत करके वहां पे पहुंचे हुए। तो इट्स ऑल अबाउट कितना तुमको ये है, फिक्र है, कितना तुमको करना चाहते हो। जहाँ पे तुम्हारी फिक्र मेहनत रहेगी वहां पे हो जाएगा। ठीक है। सो आर्टिफैक्ट के बारे में दो तीन जगह पे मैं बताया हूँ, और ये ऐसी चीज है कि वी हैव, और ये द ओनली पर्पस टू शो दिस, और मतलब द मेन पर्पस एक तो था कि ठीक है यू शुड नो दिस। सेकंड ये था कि दिस इज एक्चुअली गोइंग टू पेव अ वे, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बना देगी, बिकॉज जो डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं। तो द ओनली थिंग विल चेंज फॉर अस इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी ये सी में लिखा हुआ है, बाद में ये जावा में लिखा हुआ रहेगा। तो जावा में भी लिखा रहेगा तो हम लोग ये स्टेप फॉलो नहीं करेंगे उसके लिए। ठीक है। एंड यहाँ पे कॉन्फ़िगर स्क्रिप्ट लिखा गया था, तो ये कैसा डेवलपमेंट गाइड रहती है, कंट्रीब्यूशन गाइड रहती है। तो लिनक्स पे जो बताया गया है कि लिनक्स पे अगर किसी को प्रोग्राम लिखना है खुद का, तो उसने ऐसा कॉन्फ़िगर स्क्रिप्ट भी लिखना पड़ेगा उसको, बिकॉज दैट्स द वे। तो कॉन्फ़िगर ये सी, अगर तुमने जस्ट सी लिखा है तो यू कैन नॉट जस्ट सिंपली गो कि हाँ मैंने सी तो लिख दिया, चलो कॉन्फ़िगर रन करता हूँ, लेकिन तुमने कॉन्फ़िगर स्क्रिप्ट बनाया ही नहीं, तो रन कैसा करोगे। तो तुमको पहले वो बनाना पड़ेगा खुद ही जाके। तो अपनी एप्लीकेशन में अगर हमको सेम मेथड फॉलो करना है, लाइक हमारे डेवलपर ने सी में लिखा है कुछ, तो कॉन्फ़िगर स्क्रिप्ट हमको लिखना पड़ेगा फिर उसके लिए। तो फिर हमको लिखने पड़ेगा कॉन्फ़िगर स्क्रिप्ट। फिर मेक फाइल भी हमको बनाना पड़ेगा, तभी मेक जो कमांड है काम करेगा, क्योंकि जैसे मेक रन करता हूँ ना, तो मेक फाइल को ढूंढता है जाके सीधा। मेक फाइल ही अगर हमने नहीं बनाया तो वो रन ही नहीं होने वाला हमारे केस में। तो अगर ये हमारी कस्टम एप्लीकेशन होगी किसी कंपनी में, तो यहाँ पर ये मे बी डेवलपर्स के साथ में ही बैठ के हमको करना पड़ेगा ये दोनों चीजें, एंड देन हम लोग ये स्टेप फॉलो करेंगे। तो ये सी में भी अगर हमारा बिल्ट इन है या इन हाउस है, हमारा जो होम ग्रोन अगर होगा कोई सी का प्रोग्राम, और उसको हमको लिनक्स लिनक्स पे रन करना है, तो विल हैव टू फॉलो दिस स्टेप्स। तो ये स्टेप फॉलो करने में ये चाहिए। तो ये जस्ट स्टेप अभी कैसे लिनक्स का इंडस्ट्री स्टैंडर्ड स्टेप है कि जिसको भी लिनक्स पे कुछ टूल बनाना है तो डेवलपमेंट करो और ये दो फाइल बनाओ। तो कंट्रीब्यूटिंग गाइड दिया हुआ रहता है कि तुमको इस तरह से कंट्रीब्यूट करना है, तुमको इस तरह से डेवलपमेंट गाइड, कंट्रीब्यूटिंग गाइड वो लोग पब्लिश करते हैं। तो आगे भी एक दो जगह पे जो हम लोग टूल्स देखेंगे, उसमें भी अगर हमको खुद का कुछ कंट्रीब्यूट करना होगा, तो वहाँ पे कंट्रीब्यूशन गाइड है कि किस तरह से हम लोग डेवलपमेंट गाइड कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन गाइड कर सकते हैं, उसी को फॉलो करके करना रहता है। बट अगेन यहाँ पर भी तुमको कंसेप्चुअली समझना है। सोर्स कोड में हम लोग क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पर सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। क्योंकि जैसे नया सिक्योरिटी में कुछ आएगा तो वो लोग क्या करेंगे, नया कोड आ जाएगा। तो हम लोग ने कोड कहाँ से लाया था, यहाँ से रिपोजिटरी से लेकर आया था, राइट। सम रेपो से उठाया था हमने, VCS वर्जन कंट्रोल सिस्टम जिसको बोला जाता है, गिटहब जो है हमारा। तो मान लो हमने गिटहब से यहाँ से उठाया था सोर्स कोड, या कोई रेपो सर्वर से उठाया था।
I mean, Sadia, can you please mute yourself, or otherwise I'll have to pick you. I'm muting you, but you are again unmuting yourself. I don't even know if you are there or some kid is actually holding your cell phone, because suddenly there is too much noise, and if you are the one paying attention, then probably you would take care of that. Okay, so यहाँ पर डेवलपर क्या करेगा, जो भी इसका मेंटेनर होगा, जो हमने कोई भी एप्लीकेशन एनमैप लिया है, तो एनमैप के लिए तो कम्युनिटी ही उसकी मेंटेनर है। तो कम्युनिटी एनमैप में जैसे कोई वनरेबिलिटी आती है, कल जो हमने एनमैप का एग्जांपल देखा था, दे विल एक्चुअली गेट दैट एनमैप, उसको वो फिक्स लगा देंगे। अब यहाँ पे फिक्स आने के बाद में हमको फिर से उसको डाउनलोड करो, फिर ये पूरा प्रोसेस ये करो, तो ये दिस इज नॉट अ वेरी सीमलेस प्रोसेस, ठीक है। तो इसको मतलब इट्स नॉट अ प्रेफर्ड वे टू डू दैट, बट इट्स द लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है। प्रिफर्ड वे क्या रहेगा कि जो उसका ये पैकेज मैनेजर के जो यूटिलिटीज है, लाइक इसमें करने से क्या होगा कि तुम रेपोजिटरी जो सर्वर का कंसेप्ट है, जो रेपो सर्वर रहते हैं, तो उससे नहीं होगा यहाँ पर काम, क्योंकि हमको debian.deb फाइल डाउनलोड करके लानी पड़ेगी, और ये क्या करेगा, उसके जो भी हमारा था उसकी डिपेंडेंसीज जो रहती है, वो उसको डाउनलोड करके भी नहीं लाएगा, वो डिपेंडेंसी भी हमको ही डाउनलोड करके लाना पड़ेगा। तो विल हैव टू गेट द एक्चुअल मेन फाइल जो भी हम लोग को इंस्टॉल करना है, प्लस उसकी डिपेंडेंसीज, तो यहाँ पे अपना हेडेक बढ़ जाता है। जो दूसरा ये है, जो द वन जो हम लोग यूज करेंगे, और मैंने बता दिया था कि 3 है, उसमें से हम लोग क्या करेंगे, एक ही यूज करने वाले हैं, बिकॉज दैट इज द न्यू, बट यू विल सी पीपल यूजिंग दीज एज वेल, एप्ट और एप्टीट्यूड। तो ये क्या करेंगे, तुम्हारा डाउनलोड भी कर देंगे, डिपेंडेंसी भी कर देंगे, सिक्योरिटी फिक्सेस भी, जो सारी चीजें वो सब लगा देंगे। तो ये लोग जो है, इनका काम करने का तरीका है। अब यहाँ पर आरपीएम में जो है हमारे पास, आरपीएम इज डीएनएस एंड यम। यम इसकी हिस्ट्री वगैरह देखने की जरूरत नहीं, कुछ येलो डॉग ऐसा एक ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था, उसकी यूटिलिटी है वो। तो यम का जो वाई है, दैट स्टैंड्स फॉर येलो डॉग समथिंग, जो भी। देन डीएनएफ है, जो अभी नया मतलब नए इसमें पुश किया है, और आगे जाके रेड हैट, अभी जो फिलहाल है रेड हैट रेल 9 जो करंट वर्जन मार्केट में आ गया है, एंड मोस्ट ऑफ द स्टेबल 7 पर हैं मोस्ट ऑफ द कंपनीज। और वो 7 क्या होगा, एंड ऑफ लाइफ जाएगा, ईओएल हो जाता है। तो ये देखो, ऐसे कुछ टर्म है जो मार्केट में बहुत ज्यादा यूज अभी होते रहते हैं। तो रेड हैट का जो ईओएल है, मतलब एंड ऑफ लाइफ हो जाएगा। तो 6 तो ऑलरेडी हो गया है, बट स्टिल देयर आर कंपनीज और प्रोजेक्ट्स दैट आर यूजिंग 6, मे बी देयर विल बी 5 एज वेल जो यूज कर रहे होंगे। रेल 7 का जो एंड ऑफ लाइफ है आ गया है। रेल 8 पे बहुत सारे लोग हैं, एंड 9 हैज कम एज वेल, मतलब नया ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, जिसमें 8 और 9 में क्या हुआ है, रेल 8 और 9 में ये डीएनएफ ही यूज करने के लिए इनकरेज किया जा रहा है। और उससे पहले जो तुम्हारा जो भी है, उसमें यम है और यम ही यूज हो रहा है। बट तो 8 में कैसा किया है कि डीएनएफ और यम दोनों रखा है, अब 9 में शायद से निकाल देंगे। तो अभी तो मैंने 9 का रिव्यू 9 देखा नहीं हूँ, बट उसमें ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये रहेंगे अगर हम लोग यम यूज कर रहे हैं। दूसरा जो एक कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम है, दैट इज सूजी और सूजे, मतलब कुछ सूज अलग अलग वे से प्रोनाउंस किया जाता है उसको, डिपेंडिंग अपॉन तुम कहाँ पे से और किस से बात कर रहे हो। यूएस वाले से बात कर रहे हो तो वो अपने एक्सेंट में बोलेगा, यूरोप वाले से करोगे तो अपने तरीके से बोलेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक और है इनके अलावा जो यूज होता है, बिकॉज उसका भी एंटरप्राइज है, that is Suzy। तो सूजे, सूजा, सूजी, सूज, अलग अलग नाम से बोला जाता है। एंड देर इज नो रॉन्ग और राइट, राइट, कुछ भी प्रोनाउंस करो, बट सूजे इज व्हाट आई सी लॉट ऑफ पीपल, और एटलीस्ट पीपल जो थोड़े से मतलब ये रहते हैं, मतलब आर्किटेक्ट्स हैं जिन्होंने कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेंशंस किए हैं, आई हैव सीन देम प्रोनाउंसिंग एज सूजे, तो दे सिंपली कॉल इट सूजे। और ये भी चीजें मतलब जो यूट्यूब पे है ना, इनके हर कंपनी क्या करती है, एक समिट कॉन्फ्रेंस होस्ट करती है, लाइक AWS, गूगल, डॉकर, कुबरनेटिस, जो भी हमारे टूल्स यहाँ पे चल रहे हैं, लिनक्स कम्युनिटी के रहते हैं, उसमें सारे कम्युनिटी के लोग आते हैं, और वो लोग एक टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। अलग अलग कस्टमर आते हैं और वो बताते हैं कि हम लोग ये जो फीचर है किस तरह यूज कर रहे हैं। तो वो वीडियोस भी
हमको देखना है आगे जाके मतलब यू शुड स्टार्ट वाचिंग दोस वीडियोस एज वेल। तुमको उससे आइडिया आएगा कि अच्छा हाँ ये कंपनी में किस तरह से काम हो रहा है, वो वहाँ पे किस तरह से वो ये चीज को हैंडल किया जाता है। तो दैट इज मोर, तुमको यूज केसेस अच्छे से और समझ में आएंगे वो सारे वीडियोस देखने से। तो वहां पर मतलब यू गेट टू नो कि हाउ पीपल आर एक्चुअली प्रोनाउंसिएटिंग, जो किस तरह से वो लोग राइट वे में प्रोनाउंस कर रहे हैं उस चीज को। ठीक है। तो नाउ वी विल डिस्कस दिस। ये जो कल हमने यहाँ तक एनीवे डिस्कस किया ही था, आज मैंने डिटेल में स्टेप्स लिख दिया हूँ यहाँ पर, जस्ट अ रिफ्रेशर। अब यहाँ पे भी विल टॉक अबाउट दिस। अब इसके अंदर में जो है हम लोग यहाँ पे ना डीपीकेजी का मैन दिखाना था, मैं खुद ही भूल गया। तो मैन, तो पैकेज मैनेजर फॉर डेबियन है, और इसको जो यूज करना है इंस्टॉल करने के लिए सारे उसके ऑप्शंस हैं, एग्जांपल्स दिए हुए हैं। आई तो अगर मुझे कुछ इंस्टॉल करना है तो डैश आई आई डैश डैश इंस्टॉल लॉन्ग फॉर्म में कर सकता हूँ, एंड पैकेज फाइल का नाम दे दूंगा। तो इसका पैकेज फाइल क्या रहेगा, डेबियन रहेगा, समथिंग दैट आई नीड टू डाउनलोड फर्स्ट एंड देन डू दैट। और इसके सारे जो भी है चीज पर्च करना है, मतलब अनइंस्टॉल करना है, उसके लिए वेरीफाई करना है उसका चेकसम वगैरह, तो उसके लिए भी है। तो यू हैव ऑल द ऑप्शंस देयर, राइट। द मैनुअल पेजेस है, मैनुअल पेज में जाके तुमको रीड करना है, पढ़ना है, और इंटरनेट पे जाके देख सकते हो अगर इफ यू वांट टू डू दैट, लाइक सो मेनी ब्लॉग्स आर देयर, आर्टिकल्स आर देयर। तो वो सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन विच वन वी आर यूजिंग। और ये चीजें करनी पड़ेगी ना तुमको, तभी जाके होगा, क्योंकि यहाँ पे लिनक्स इतना डिटेल में सिखाने मतलब उतना अगर सिखाते बैठ जाऊंगा मैं लिनक्स डिटेल में, तो साल भर या 6 महीने तक हम खाली लिनक्स पे ही बात करते रहेंगे। तो लिनक्स को फास्ट फॉरवर्ड करके खत्म करना है। तो इसलिए मैं सिर्फ फाउंडेशनल इंफॉर्मेशन तुम लोगों को दे रहा हूँ, ताकि तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो चीजों से, एंड देन यू गाइस गो एंड एक्सप्लोर ऑन योर ओन। और वही तुमको करना पड़ेगा। असाइनमेंट में हम थोड़े बहुत चीजें दे रहे हैं, बट लाइक आई सेड वी डोंट सी लॉट ऑफ पीपल डूइंग असाइनमेंट्स। तो उससे समझ में आ रहा है कि कितने लोग ऑन ऑन देयर ओन दे प्रोबेबली गोना डू दैट। तो दैट इज आल्सो द केस, बिकॉज यहाँ पे what कितना भी मैं एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे डिलीवर कर दूं, बट अगर तुम लोग ही नहीं चाहोगे, तो तुम लोग खुद मेहनत नहीं करोगे खुद पे, तो कुछ नहीं होने वाला। तो यू कैन ओनली हेल्प योर सेल्फ, आई कैन नॉट हेल्प एनी। तुम अपने आप की मदद कर सकते हो बाय एक्चुअली प्रैक्टिसिंग इट एंड टेकिंग इट सीरियसली। तो कमिंग बैक टू दिस, यहाँ पर आते हैं ये किस तरह से काम करते हैं। तो जब भी हम लोग ये करते हैं, तो एक क्या रहता है, एक हमारे पास में एक रिपोजिटरी सर्वर है, जिसको तुम समझो ये गोडाउन है, जहाँ पे सारे मतलब पैकेज रखे हुए हैं। अब यहाँ पे डेबियन का, अब ये गोडाउन को पालने वाला कौन है, तो उसका वो रहेगा, तो ये रिपोजिटरी सर्वर रहेगा। तो अब बेस्ड ऑन ये किसकी तुम ये किसका ये कर रहे हो, वो कम्युनिटी उसको पालेगी। ठीक है, वो पालना मतलब उसमें नया पैकेज लाके रखना, उसको सारी चीजें अपडेट करते रहना, उसके जो भी ये जो सोर्स कोड से उसको कंपाइल करके यहाँ पे रखना है, हमारे लिए अवेलेबल करना है। तब तो वो सब कर रहे हैं यहाँ पे, जो करने वाले ये जो स्टेप्स हैं, कोई हमारे बिहाफ पे करके दे रहा है। एक्सपर्ट्स आर डूइंग इट फॉर अस, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, जो उसको ऑफकोर्स एक्सपर्ट ही कर रहे हैं वो लोग। डेबियन कम्युनिटी में कोई भी जाके, या उबंटू कम्युनिटी में कोई भी जाके ऐरा गैरा जाके कोई भी he cannot get involved, any Tom Dick and Harry cannot go and part of them. He has to be extraordinary creative people, और उसमें कुछ contribute करेगा, then he will be part of the team. और सब जगह पे contribution guide है किस तरह से contribute करना है, it's open community, so they allow anybody to come and collaborate. ठीक है। So there is this repository server जहाँ पे सारे ये रखे हुए रहते हैं, like packages, तो start.deb सारे पैकेजेस रखे हुए रहते हैं, सारे डिपेंडेंसीज रखी हुई रहती है। तो यू हैव ऑल द पैकेज दैट यू वांट, नॉट ऑल पैकेजेस पर जो भी पैकेज रहेगा, बिकॉज ये जो सर्वर है ये सारे पैकेज नहीं रखने वाली है। मतलब ये डेबियन है, तो डेबियन सारे पैकेज, मतलब मुझे टेराफॉर्म इंस्टॉल करना है, तो टेराफॉर्म ये लोग नहीं रखेंगे, बिकॉज दैट इज नॉट लाइक बहुत कॉमन पैकेज नहीं है वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। वो ऐसा है कि किसी को यूज करना है करो, किसी को नहीं यूज करना है मत करो। सॉल्ट है, सॉल्ट स्टैक है जो कॉन्फ़िगरेशन का टूल है, तो वो भी यहाँ पे नहीं रहेगा। तो ऐसे बहुत सारे मतलब प्रोग्राम्स हमको आगे जाके दिखेंगे। एंसिबल है, एंसिबल अभी रेड हैट में आ गया है, बिकॉज वो रेड हैट ने खरीद लिया है। तो रेड हैट के जो रेड हैट की रिपोजिटरी मेंटेन करने वाले लोग हैं, वो एंसिबल को बाय डिफॉल्ट डाल रहे हैं। डॉकर है, हर सिस्टम पे डॉकर नहीं मिलने वाला तुमको। तो वो सारी चीजें इंस्टॉल करने के लिए क्या है कि डॉकर का ये तो एक डेबियन वाली रिपोजिटरी होगी, जहाँ पे हमको कॉमन जो डेबियन के पैकेजेस है, या डेबियन कम्युनिटी ने बोला है कि हाँ ठीक है, इसको हम हमारे रिपोजिटरी में ऐड कर ले रहे हैं, अब तुम यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो।
तो जब वो कम्युनिटी में यहाँ पे डाल देंगे ना, तो हम लोग इसको एप्ट कमांड से सीधा इंस्टॉल कर सकते हैं। एप्ट इंस्टॉल डॉकर बोल दूंगा। तो जब मैं एप्ट इंस्टॉल डॉकर बोल रहा हूँ ना, तो यहाँ पर वो रहना चाहिए डॉकर डॉट डेव, डॉकर उसका जो भी वर्जन रहेगा, देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, और ये ऐसा रहना चाहिए यहाँ पर अवेलेबल, तभी जाके मैं जो है यहाँ से इंस्टॉल कर सकता हूँ। अब द थिंग इज, ये किसी सर्वर पे रन हो रहा होगा, राइट, और मैं किसी सर्वर पर यहाँ पे ये कमांड रन कर रहा हूँ। तो ये मेरा सर्वर है, सर्वर 01, और मेरा खुद का नेटवर्क चल रहा है यहाँ पे, इनका खुद का नेटवर्क चल रहा है। तो नेटवर्क वगैरह भी एवरीथिंग इज इन एक्शन राइट नाउ, सब कुछ चल रहा है यहाँ पे। तो इस नेटवर्क से यहाँ पे मुझे कनेक्ट होना है। इसको क्या करेगा, ये ऐप जाके इधर से डाउनलोड करके लेकर आएगा और फिर उसको ये इंस्टॉल कर देगा। बिकॉज ऐप क्या कर रहा है, बिहाइंड द सीन डीपीकेजी ही यूज कर रहा है, बस ये कुछ इसमें रैपर्स लगे हुए जो हमारे लिए ऑटोमेट करके दे रहा है। डीपीकेजी क्या करता था, ये यहाँ से इंस्टॉल डाउनलोड करके नहीं लाता था, हमको खुद डाउनलोड करके लेकर आना पड़ता था डॉट डेव पैकेज, तब जाके मतलब हम लोग उसको इंस्टॉल करते थे जो भी उसका कमांड है। तो एक बार ये डेव फाइल यहाँ पर आ गई, तो हम लोग उसको क्या करते थे, डीपीकेजी डैश आई और ये पैकेज का नाम देके इंस्टॉल कर देंगे। अगर डिपेंडेंसी नहीं है तो डिपेंडेंसी भी इंस्टॉल करते बैठो, ऐसे डाउनलोड कर करके लाके, ठीक है। तो दैट्स अ वे डीपीकेजी में हम लोग कर सकते हैं। और लेकिन इसमें क्या होगा, ये खुद ही करेगा। तो ये बेसिकली क्या करता है, टेम्पररी लोकेशन पे जो है ना, ये डाउनलोड करके रख देता है, कैशिंग ऐसा कोई लोकेशन रहेगा तो वो लोकेशन पे वो डाउनलोड करके रख देगा। ज्यादातर वायर कैश में रहता है वो लोकेशन, ठीक है। वहां पर वो डाउनलोड करके टेम्पररी होस्ट करेगा और वहां से फिर वो इंस्टॉल कर देगा और उसके बाद में क्लियर कर देगा। तो ये पूरा इस तरीके से कर रहा है। और दूसरा क्या होता है कि जब ये यहाँ से इसको डाउनलोड करके ला रहा है, तो मैंने यहाँ से लेकर आया, तो यहाँ पर एक ये भी हो सकता है, मैं यहाँ पे कोई इंट्रूडर भी बैठा हुआ रहेगा, जो हम लोग ने एसएसएच के टाइम पे किया था, राइट, समझाया था मैंने कि मैन इन द मिडिल अटैक हो सकता है। कोई इंट्रूडर क्या कर सकता है, तुम्हारा जो कनेक्शन यहाँ से डाइवर्ट कर देगा। इंस्टेड ऑफ तुमको यहाँ जाना था एक्चुअली डेबियन के जो उबंटू ऑफिशियल पे जाने की बजाय, तुमको हैकर ने क्या किया, आधे रास्ते से चेंज करके अपने खुद के सर्वर पे लेकर आ गया। तो हाउ डू यू मेक श्योर कि जो तुमने यहाँ से ये जो तुमने लेकर आया है दैट इज द राइट सर्वर, राइट। जो एसएसएच में फिंगरप्रिंट्स आते हैं, तो वो जो चेकसम होता है, तो चेकसम अल्गोरिथम्स के बारे में ना विल डिस्कस दैट इन गुड डिटेल्स। और ऐसा हम लोग समझेंगे कि तुमको सारी चीजें समझ में आ जाएगी प्रॉब्ली, जिस तरह से अभी तक जितनी चीजें समझी, अगर अभी तक जितनी चीजें समझी होंगी, बिकॉज दैट्स माई अजम्पशन कि लोगों को समझ में आ रहा है जिस तरीके से मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूँ। तो मैं जो इंक्रिप्शन है, टीएलएस है, एसएसएल है, इस अलग अलग टाइप के अल्गोरिथम्स है, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक, मैं सारी चीजें एकदम अच्छी डिटेल्स में समझा दूंगा। बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा एसएसएच का डीप डाइव किया था, हम लोग आगे टीएलएस, एसएसएल और बाकी चीजों का भी डीप डाइव करेंगे। तो यहाँ पर ये जो सारी चीजें हो रही है, इनमें एक शाह अल्गोरिदम, ये इसमें हैश फंक्शंस का अल्गोरिदम चल रहा है। हैश एक फंक्शन है इंक्रिप्शन में। तो उससे क्या होता है कि यहाँ पर जब मैं उसका हैश जनरेट करूंगा, इसका हैश जनरेट करने के लिए जो ये हैश का एक सिंपल सा मैं ये बताता हूँ तुमको एग्जाम्पल। मैं एक हैश जनरेट करता हूँ, MD5 हैश। तो ये मैं किसी का भी जनरेट कर सकता हूँ, ये तो मैं चलो यहाँ पे तुमको बता रहा हूँ, बट मैं यहाँ पे लिख दे, कुछ भी लिखूंगा ना मैं, कि मेरा नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, तो मैं इसका जनरेट करता हूँ हैश। तो MD5 हैश है ना, यही है। अब मेरा नाम कोई भी कहीं पे भी लिखेगा, तो ये जो सॉफ्टवेयर था, तो मैं पैकेज का भी कर सकता हूँ। तो मैंने मान लो कि इसका जो हैश था यहाँ पर, ये ऐसा था, ये MD5 हैश उसका ऐसा था। तो ये पैकेज आने के बाद मैं यहाँ पर भी वो सेम हैश जनरेट कर सकता हूँ, और वो भी सेम ही रहेगा। अगर यहाँ पे किसी ने कुछ चेंज कर दिया है, तो ये डिफरेंट हो जाएगा। तो वो तुम एक लेटर लिखो या वो लिखो, उस वो हो जाता है। और प्लस एक जीपीजी की रहती है उसके अंदर में। तो वो सारे मतलब वैलिडेट करने के लिए रहता है कि, तो ये जो की में यही रहता है, हैश ही रहता है उसके अंदर में। वो जो जीपीजी की रहती है, वो हैश को भी वो लोग इंक्रिप्ट करके ये कर लेते हैं। तो तुम पहले की डाउनलोड कर लेते हो, की ऐड कर लेते हो, उसके बेसिस पे उबंटू क्या बोलता है कि हाँ ठीक है, ये जो लाया है हमने वो ये। तो कंसेप्ट जो जो हम लोग ने लाना चाहते थे, हमने वही लेकर आया है, कहीं हैकर ने हमको बीच में से कहीं लेकर नहीं गया। मतलब हैकर क्या कर सकता था, जैसे हम यहाँ पे कनेक्ट कर रहे थे, हैकर हमारा कनेक्शन को डाइवर्ट करके उसके सर्वर पे लेकर आ जाता है, और उसके सर्वर से फिर हमको वो दे देता था, यहाँ से हमारी रिक्वेस्ट ऐसी जाती थी। तो हमको तो पता नहीं कि कौन सा जा रहा है, ये हैकर के सर्वर से हमारा पैकेज आ रहा है कि वहां से आ रहा है। अब वो पैकेज को ये करने के लिए ये करना पड़ता है ऐसा। ये हमारा हैकर का सर्वर रहेगा।
ठीक है। तो ये हम लोग किस तरह से अवॉइड करें, उसके लिए ये चीजें होती है और वो करना है। यस असलम। Shehzad, this what you try to explain is that कि जो हम लोग ये की जनरेट करते हैं and this MD5 से जो हम लोगों ने इसको एल्गोरिथम किया, तो this matches with this one, right, with the server. राइट। तो ये MD5, जो MD5 का मुझे दिखाने का पर्पस ये था कि अभी मैंने मेरा नाम से ही किया ना, तो तुम भी अगर जाओगे और मेरा नाम लिखोगे तो यू विल फाइंड दिस। तो मेरे नाम का MD5 हमेशा यही आने वाला है, एवरी सिंगल टाइम। तो इससे क्या होगा कि अगर यहाँ से मैंने इसके अगेंस्ट, इस फाइल के अगेंस्ट मैंने MD5 करता था, तो एक मुझे ऐसा ये आता था हैश, और ये सेम फाइल रहेगी अनचेंज्ड, इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया हुआ रहेगा। तो सेम हैश यहाँ पर भी जनरेट होगा, उसमें थोड़ा सा भी चेंज कर दिया है किसी ने, लाइक सोर्स कोड में यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया, उसको कंपाइल करके फिर से डॉट डेफ बना के रख दिया यहाँ पर, तो वो डिफरेंट हैश लेकर आएगी, उसका हैश डिफरेंट रहेगा। ठीक है। तो वो हैश डिफरेंट हो जाएगा। तो हैकर ने भी, अगर हैकर के इससे दे रहा है, तो हैकर ऑफिशियल पैकेज नहीं दे रहा ऑब्वियसली, तो उसको उसने कुछ तो चेंज किया होगा ना, उसके अंदर कुछ ऐसे चीज डाला है जिससे हमारा क्योंकि हैकर का इंटेंशन तो इल इंटेंशन है, तो उसने कुछ ना कुछ उसमें काड़ी किया हुआ। तो इसका सडनली यहाँ से जो भी हैश आएगा, यहाँ पे जब आएगा और जब हम हैश उसको जनरेट करेंगे, मतलब हमको जनरेट नहीं करना रहता है बेसिकली, हमको डाउनलोड करके पहले से रखना रहता है उसको। तो उससे क्या होता है, ये जो ऐप है खुद ही वैलिडेट करके रख लेता है, तो ऐप क्या कर लेगा, खुद ही इसको ये कर लेता है। तो ये सब ऑटोमेटेड ऑटोमेटेड वे में हो जाता है, बट दिस इज जस्ट मैं अभी से ही आइडिया प्लांट कर दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा थॉट प्रोसेस हो जाए। तो ये जो चीज है हमारी, कि इन ऑर्डर टू कनेक्ट और कुछ करने के लिए तुमको ये करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, उसके बाद में आ जाता है इंक्रिप्शन, और जो TLS SSL वाली चीजें हैं, ये चेकसम जो होते हैं, हैशिंग वाले ये सारे, तो उसके बाद में वो एक लेवल की सिक्योरिटी बढ़ रही है। तो अभी तक मैं वो लिख नहीं रहा था क्योंकि हम लोग ने अभी तक ज्यादा उसमें डिस्कस नहीं किया था, लेकिन ये दिस इज द सेकंड टाइम वी आर एक्चुअली ब्रिंगिंग दिस टॉपिक। एक तो हमने SSH में देखा था और एक हमने यहाँ पर देखा था। तो अगर तुम कोई कस्टम रिपोजिटरी ऐड करते हो, तो तुमको ये की वाली फाइल भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। तो अल्गोरिथम्स दे माइट बी यूजिंग सम एल्स, अभी मैंने MD5 से बता दिया है। अलग अलग भी है, इसने शाह का भी दे दिया मुझे, SHA-1 SHA-256, अलग अलग हैशिंग एल्गोरिथम है। तो विल सी दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम, मतलब कौन से रहते हैं आगे। बट द So every time when the file is updated, तो ये हम लोग को नया ही ये ऑटोमेटिकली नया अपडेट करना पड़ेगा यहाँ पर, then only it will be matched, it will be हाँ matching, तो right? अगर यहाँ राइट, पर ये यस पैकेज में यस करेक्ट, गुड क्वेश्चन, वो हमेशा हमको करना पड़ेगा। तो ये जो पैकेज मैनेजर है ना, जब भी हम लोग ऐप अपडेट करेंगे ना इसको ऐसा, तो हमेशा चेंज अपडेट करते रहेगा, इसलिए हम लोग हमेशा इसको अपडेट करते रहते हैं। ये ऐप अपडेट कर ओके ओके, देंगे तो ये हम तो ये अपडेट करते ऑटोमेटिकली हैं। अपडेट हो जाएगा फिर, राइट? यस। तो द होल पर्पस इज कि ऐप तुम्हारा पूरा आसान कर दे रहा है सब काम। यहाँ पर तुम्हारा ऐसा रहता था कि सब तुमको खुद से करना पड़ता था ये सारी चीजें। तो दीज आर ऑल थिंग्स गोइंग बिहाइंड द सीन। ये जो चीजें हमको पता नहीं रहती, हम तो कल इंस्टॉल कर लेते हैं, हो जाता है हमारा काम। बट ये इतना सारा हमारे लिए आसान कर रहा है। तो रिकमेंडेड वे एवरीवेयर इज टू डू दिस वे। जब भी तुम कोई थर्ड पार्टी पैकेज इंस्टॉल कर रहे हो, यूज पैकेज मैनेजर लाइक ऐप, yum, zipper, DNF, Pacman, मैक पे ब्रू रहता है। सो लाइक कोई मैक यूज करता है तो हिल ना होता है। तो एनीवे, तो दैट इज द, ये कुछ चीजें हैं जो बिहाइंड द सीन जाती है, राइट। हो जाता है। अब सर्वर पे ही, हाउ डज दिस ऐप नोज कि मुझे इस सर्वर पे जाना है, या फिर मुझे डॉकर वाले सब सर्वर पे जाना है जहाँ पे, अब ये कैसा डेबियन है तो इन्होंने सारे कॉमन पैकेज रखे हुए रहेंगे। अगर कोई डॉकर का सर्वर होगा तो वो सारे कॉमन पैकेज नहीं रखेंगे, वो सिर्फ अपने खुद के ही पैकेज रखेंगे, डॉकर रखेंगे और डॉकर की सारी डिपेंडेंसी रखेंगे, वो और कुछ भी नहीं रखने वाले उसके अलावा, क्योंकि वो सिर्फ डॉकर के है ना, दे आर द डॉकर पीपल, तो वो सिर्फ डॉकर के सारे फाइल्स रख देंगे वहां पे, नथिंग एल्स। ये डेबियन में ऐसा था कि ये लोग दूसरे दूसरे पैकेज रख सकते हैं, ये लोग टार रख देंगे, अलग अलग जो एचटॉप रहते हैं, तो जो भी मतलब कॉमनली पैकेज यूज होते हैं, एनमैप में भी रख देंगे, टेलनेट रख देंगे, पिंग रख देंगे। ये सारे ऐसे जो कॉमन यूटिलिटीज हैं जो चाहिए रहते हैं, वो सारे पैकेजेस वो लोग रख देंगे। और ये कम्युनिटी है ना, तो कम्युनिटी सब ऐड करते जा रही है, मतलब तो बहुत सारे जो चाहिए है ना हमको चीजें, लाइक वेब सर्वर चाहिए तो HTTPD रख देंगे वो लोग, इंजनएक्स भी आ जाता है। तो सारे मतलब मोस्ट ऑफ द कॉमन पैकेजेस रह जाते हैं। कुछ ऐसा पैकेज रहेगा जो नहीं है, तो शायद वो वाला पैकेज उस पे नहीं रहेगा, तो हमको ढूंढना पड़ेगा उसकी रिपोजिटरी, अगर उनकी कम्युनिटी ने होस्ट किया है। यस गुफरान। Yeah, if we are using yum update -y, so
F1Y क्या करते हैं मतलब? हाइफन वाई क्या करता है, मैं अभी तो बता रहा हूँ कि मैन पेज में जाना है हमको, उसके लिए तो मैन पेज जाके पढ़ना है तुमको। यहाँ पे मैं कंसेप्चुअली फाउंडेशन बता रहा हूँ। अब जो वाई है वो तो मैन में जाके देख सकते हो। अभी तो जो सेम चीज जो है ना, तो मैन ऐप में आओ, जो वाई वहां पर है ना, क्योंकि अभी आई डोंट हैव अ रेड हैट सिस्टम, आई हैव दिस। सर्च करो उसको वाई। नहीं यार, यहाँ पे देखते हैं वाई दिया है क्या इसमें। इसमें ऐप गेट में जाने बोल रहे हैं। क्योंकि वो उसका तुमको देखो भाई मैन पेज पढ़ना है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ये देखो वाई वी आर ऑन। तुम अगर यम में भी जाओगे तो मैं, मेरा जो होल पर्पस है कि तुमको जो मैंने तुमको रास्ते बता दिए हूँ, अब तुमने जाके उसको, मैं यहाँ पे स्पून फीडिंग फॉर एवरी चीज मैं नहीं करूंगा, वो ओनली सर्टेन थिंग करूंगा। और लिनक्स के लिए तो अब बहुत ज्यादा ही हो जाए, बिकॉज 2 या ढाई महीने से हम लोग लिनक्स ही करते बैठे। तो वी नीड टू गेट आउट ऑफ दिस। तुम लोग प्रैक्टिस करोगे तब तुमको समझेगा। मैं बता रहा हूँ कि मैन पेज पढ़ना है, कुछ भी समझना है, डैश वाई डैश एफ डैश वॉट एवर, तुमको जाके सीधा मैन पेज पढ़ना है। मतलब उस कमांड उसको किस तरह से यूज करना है हमको, उसका मैनुअल पेज दिया हुआ है ना। जैसे कुछ तुम सामान खरीदते हो तो मैनुअल पेज दिया हुआ है, तो तुम खुद जाके देख सकते हो मैनुअल पेज में। अब ये क्या कर रहा है, अज्यूम यस कर रहा है। अब मैनुअल पेज पढ़ने के बाद भी तुमको अगर नहीं समझ में आता है कि अरे ये बोल क्या रहा है यहाँ पे, देन यू कैन आस्क के अच्छा मैंने पढ़ा, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो दैट वुड बी द मतलब ऐसा टाइम लगेगा कि हाँ चलो तुमने ट्राई किया बट तुमको नहीं समझ में आ रहा है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी ऑटोमेटिक यस टू प्रॉम्प्ट्स, अज्यूम यस टू आंसर ऑल द प्रॉम्प्ट्स एंड रन नॉन इंटरएक्टिवली। तो अगर तुमको नॉन इंटरएक्टिवली रन करना है, इंटरएक्टिव क्या रहता है, this is for everyone, right? When I say tum, I'm actually referring to everyone. लास्ट टाइम जो हम लोग आपने बताया था कि यस और नो जो इंस्टॉलेशन के टाइम पूछता है, वो इसके बारे में बोल रहे हैं Yes, ना आप ये? yes, yes, yes. अगर बाय डिफॉल्ट रहा तो वो अगर कैपिटल में हमने लिखता है, डैश राइट? वाई लगा दिया उसको, हाँ तो वो यस नो पूछता है ना, तो वो इंटरएक्टिव वे में पूछ रहा है अपने को। अगर हमको चाहिए कि नहीं भाई तू अज्यूम यस करो, बोल रहा है ना अज्यूम यस, तो अज्यूम यस करना है। वो जो यस नो पूछ रहा है ना हमको, तो अज्यूम यस करता है। तो डैश वाई ठीक है। लगाएंगे तो वो यस ही करेगा। और समथिंग बाकी दूसरे भी ऑप्शंस दे सकते हैं, अज्यूम नो करो, मतलब ये भी कर सकते हैं। बट व्हाई वुड वी डू दैट, लाइक वो इंस्टॉल ही नहीं करेगा। अज्यूम नो हम लोग कर सकते हैं फॉर टेस्टिंग पर्पस, जब हमको इंस्टॉल नहीं करना है बट हमको जस्ट देखना है कि रिपोजिटरी में वो है या नहीं। कस्टम रिपोजिटरी के टाइम पे देखेंगे तो वो ऐसा है। तो वो ये नहीं पूछेगा, और यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। तो मेरा इंटेंशन यही है कि तुम लोग को कंफर्टेबल बनाओ डॉक्यूमेंटेशन रीड करने के लिए, इसलिए मैंने तुमको बताया भी था सिनॉप्सिस किस तरह से रीड किया जाता है। सिनॉप्सिस को रीड करने के लिए जो स्क्वायर ब्रैकेट का मीनिंग क्या रहता है, ये 3 डॉट का मीनिंग क्या रहता है, ये सारी चीजें मैंने बताया था ना। तो वो चीजें तुमको प्रैक्टिस में लाना है। तो यू ऑल्सो हैव टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दैट वे। बस गेट द जॉब डन, कैसा वैसा मतलब कैसा वैसा मरते धरते काम कर लो वैसा मत करो। ऐसा काम करो कि तुम्हारा ग्रिप अच्छा हो, तो वो कभी तुम मतलब तुम्हारी जब फाउंडेशन मजबूत रहेगा तो तुम्हारी बिल्डिंग कभी गिरेगी नहीं। तुम्हारा जो ग्रिप है एकदम मजबूत करके रखो। कैसे वैसे हाथ पैर मार के काम कर लिया, हमको पता ही नहीं हुआ कैसे भी, तो वैसा सेटिस्फैक्शन जो तुम्हारा सेटिस्फैक्ट्री लेवल है ना, वैसा रखो कि जब तक मुझे नहीं समझ रहा, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। और बहुत ज्यादा तो ये कुछ एकदम इजी चीजें हैं, और इसके लिए अभी तुम्हारे पास यू हैव समबडी हु कैन एक्चुअली, लाइक तुम लोग मुझे पूछ सकते हो व्हेन यू, तुम जब खुद समझने की कोशिश करोगे नहीं समझेगा तो यू कैन कम एंड आस्क मी। तो दैट वे दैट, तो अभी तो कोई है तुमको बता सकता है, मैं मेरे एक्सपीरियंस से आई कैन टेल यू, बट कब बताऊंगा जब तुम लोग जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ फॉलो करने के बाद में नहीं हो रहा है तब। अभी तो ऐसा हो रहा है कि मैंने जो प्रोसेस बताया हूँ वो फॉलो नहीं करके अननेसेसरी रिपीटेडली क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन पूछ लो। एंड ये चीजें मैं इसलिए आई डोंट वांट टू डिस्करेज एनीवन कि हाँ क्वेश्चन पूछ रहा है तो सर यहाँ पे 4-5 सुना दे रहे हैं। तुम अगर ये सब बातें नहीं सुनोगे तो तुमको सीखना ही नहीं आएगा। तो तुमको अगर सीखना है तो अपने शर्म हया को बेच देना है तुमने, और उसके बाद पूछो। क्योंकि बाकी लोग वही डर के नहीं पूछ रहे हैं, शर्म से नहीं पूछ रहे हैं, दे आर शाइंग अवे। तो वो सारी चीजें नॉट गोइंग टू हेल्प यू। ठीक है, तो for anything that you see the usage, there is always documentation, there is always blogs on the internet। तुम गूगल पे डालो ना उसको कि व्हाट इज डैश वाई इन यम अपडेट, तुमको बता देगा क्या है वो। तो वो ऑप्शन है कहाँ पे यूज करना है। यहाँ पे मैं तुमको फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, और असाइनमेंट में हम लोग 2-3 चीजें दे देंगे। तो
असाइनमेंट जब तुम कर रहे हो तो इंटेंशन तो यही है कि तुम उसको जाके थोड़ा और एक्सप्लोर करो, ठीक है, तो वो सारी चीजें करना। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन ये बोल रहा था कि जब मैं ऐप इंस्टॉल बोलता हूँ डॉकर, तो उसको कैसा पता रहता है मुझे इस पर आना है, देयर शुड बी अ वे टू डू दैट, कि एक प्रोसेस है, जब इसको पता रहे, इसको कैसा पता चलता है, तो यहाँ पर एक लिनक्स में एवरीथिंग इज अ फाइल, राइट। तो यहाँ पे एक और फाइल है हमारे पास में, और आई एम टॉकिंग अबाउट अ कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो जैसे मैंने कॉन्फ़िग फाइल बोला तो फटाक से तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि कौन सी डायरेक्टरी में हमको जाना है। वी हैव टू गो टू etc डायरेक्टरी, राइट, बिकॉज ऑल कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स आर प्रेजेंट इन etc डायरेक्टरी। तो हम लोग सीधा कौन सी डायरेक्टरी में जाएंगे, etc में जाएंगे, ठीक है। etc डायरेक्टरी में जाएंगे जहाँ पे हमको सारे कॉन्फ़िग्स मिलेंगे, और इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है दे आर प्रेजेंट इन etc apt sources.list। ये फाइल है जो यहाँ पर है, इसका भी लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर भी apt yum repos.yum.repos.d ऐसा कुछ रहता है, yum.repos.d। ज़्यादा तो यही पता था मुझे, लेकिन अभी उबंटू पे मैंने देखा हूँ तो इसलिए। तो यहाँ पर ये रहेगा repos.d में सारे ये रहते ये और यहाँ पे repos yum.repos करके भी एक फाइल रहेगी जो कि बिकॉज ये डॉट डी क्या है, दिस इज अ स्नैप इन डायरेक्टरी, राइट। तो यहाँ पर भी इसका भी स्नैप इन डायरेक्टरी आएगा। अगेन ये मैंने बार बार बताया क्योंकि लिनक्स में एक कॉमन वे है, दिस इज वेरी कॉमन दैट एवरीवेयर इट विल बी लाइक दिस। तो सोर्सेस डॉट लिस्ट रहेगा, तो इसमें स्नैप इन डायरेक्टरी क्या हो जाएगा, डॉट डी। तो ये source.list is for Debian and Ubuntu, right, Shahzad? ये आपने जो बताया। ये यहाँ पे लिखा हुआ ना, ये वाला यहाँ पर, तो ये अच्छा, इसके लिए। and that is तो for Red Hat DVM दिस वाला। इज फॉर रेड हैट, यस। तो हमको जो, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे उसको दिया गया है कि एक्चुअली कौन से सर्वर पे जाना है। तो अभी फिलहाल वी आर हियर, तो मैं तुमको ये बता, और ये दो फाइल्स हैं। अब कंसेप्ट जो है कि देखो, ये वाला फाइल हमने यूजर ने टच नहीं करना है, ये सिस्टम ही लिखेगा इसके अंदर सब कुछ। यूजर को कुछ भी देना है तो स्नैप इन डायरेक्टरी में डालना है। तो फॉर द पीपल हु आर न्यू, यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ, पुराने लेक्चर्स में वी हैव डिस्कस दिस, और फिर तुमको हर जगह पे दिखाई देगा, ठीक है। तो ये स्नैप इन डायरेक्टरी रहती है, जो डॉट डी का मतलब रहता है डायरेक्टरी। तो यूजर डिफाइन custom settings, custom config, whatever you have custom, put everything here in the .d directory. That is the common concept everywhere in the Linux, right? लास्ट टाइम पे हमने दूसरे इसमें देखा था, अभी हम लोग इसमें देख रहे हैं, तो वो कॉमन है। यहाँ पर भी वही है, तुमको खुद के रिपोजिटरी सर्वर के नाम डालने हैं यहाँ पर। तो ये जो सर्वर है हम लोग खुद भी बना सकते हैं अपना सर्वर, और कंपनी वही करती है। कंपनी का क्या रहता है सेटअप, कंपनी का खुद का ऐसा नेटवर्क रहेगा, ठीक है। और जो तुम्हारा जो रेपोजिटरी सर्वर है वो तो बाहर है, क्योंकि ये तो डेबियन की कम्युनिटी कर रही है। तो डेबियन की अभी यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। तो हम लोग कैट एप्ट रिसोर्सेज डॉट लिस्ट, सो कैट कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पे देखो सारे अब ये जो है इनका एक ये लिखा हुआ है कि कन्वेंशन है, हाउ शुड बी, हाउ किस तरह से हमने ये रखना है। तो इस पे अगर मैं किसी एक पैकेज को उठाता हूँ, यहाँ पे सारे दिए हुए हैं कि कौन सा पैकेज के लिए क्या है, इसके लिए क्या है, कहाँ पे जाना है। तो डेबियन ये वाला एक्चुअली रहता है, मैं आई वांट दिस नेम। ये नेम को मैं क्या करूँगा, तुमको द ओनली थिंग आई एम इंटरेस्टेड अभी, इस नेम का मुझे आईपी निकालना है, राइट। तो आईपी निकालने के लिए मैं इसको पिंग कर सकता हूँ, अगर वो पिंग सपोर्ट करता होगा तो यस। तो पिंग ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये पिंग, ये इसका आईपी है। तो ये जो डेबियन सर्वर था यहाँ पर, ये पब्लिक आईपी है। अब ये पब्लिक है ना, RFC 1918, तो तुमको बता देगा कि पब्लिक है या प्राइवेट है। तो ये चीज तुमको, तो अब तो तुम, मतलब मैंने बोला था कि तुम अपना स्टिकी नोट बना के सामने रखो, जहां पर भी तुम बैठ के काम करते हो, पढ़ाई करते हो, तुम्हारा लैपटॉप है, उस पर स्टिकी नोट बना दो, RFC 1918 कौन से रेंजेस है। वो रेंज नहीं रहेगी तो सीधा वो पब्लिक आईपी है। तो दिस इज अ पब्लिक आईपी राइट नाउ, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अगर तुम्हारा ये सर्वर है, मान लो कि ये सर्वर पे तुम कनेक्टेड हो और यहाँ पे से तुम यहाँ जाना चाह रहे हो, तो तुम्हारे नेटवर्क से अगर तुमको इंटरनेट की कनेक्टिविटी अलाउड रहेगी तभी तुम जा सकते हो यहाँ पे बाहर। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा रहता है कि इन सबको प्राइवेट रखा जाता है, बिकॉज जैसे तुम इंटरनेट के लिए अलाउ करोगे कनेक्टिविटी को, तो इंटरनेट वाला भी अंदर आएगा।
तो उसके लिए नेट वाला कंसेप्ट है कि हम लोग नेट कर सकते हैं। नेट क्या करेगा, सिर्फ वन डायरेक्शनल अलाउ करेगा, तो ये सर्वर्स को बाहर हम लोग यही करेंगे फॉर नाउ। बट कुछ कुछ एप्लीकेशन में ऐसा रहता है कि नहीं, हम लोग अलाउ ही नहीं कर सकते वो भी ऐसा भी करने के लिए, बिकॉज बाहर जाने में क्या हो रहा है, ये वाला खतरा है, राइट। ये खतरा मैन इन द मिडिल वाला हो सकता है कि हमको कभी भी ये कर सकता है, क्योंकि ये नेट का क्या रहता है कि जब तुमको रिक्वेस्ट सेंड करते हो तो रिस्पॉन्स आता है, सेम सेम रास्ते से आ जाता है। लेकिन नेट में क्या मिलेगा तुमको बेनिफिट, कि जब व्हेन यू हैव द नेट गेटवे, तो वो तुमको बाहर वाले को अंदर आने नहीं देगा, सिर्फ अंदर वाले को बाहर जाने का अलाउ करेगा। व्हेन वी पुट अ नेट गेटवे लाइक दिस, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ हमारा सर्वर और ज्यादातर जो एप्लीकेशन बहुत ज्यादा मतलब बिजनेस क्रिटिकल नहीं रहेगी या फिर बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं रहेगी, फाइनेंशियल डेटा वगैरह नहीं रहेगा, तो दैट एप्लीकेशन दे अलाउ इट, तो नेट पे आएगा। नेट इसका पब्लिक आईपी को प्राइवेट आईपी बनाएगा और यहाँ पे पहुंचा देगा इस डेबियन सर्वर पे, ठीक है। तो दैट, क्योंकि यहाँ पे नेट का काम क्या है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, मतलब प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में बना दे। तो अगर हर सर्वर को मैंने राउट, ये कब होगा, जब मैं उसको राउट कॉन्फ़िगर करूंगा, राइट, मुझे उसका राउट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, तो ये राउट टेबल में रहता है। तो देखो एकदम सिंपल बन रहा है। मैंने फायरवॉल का तुमको टेबल बना के बताया था कि फायरवॉल में क्या रहता है, सोर्स, डेस्टिनेशन, पोर्ट और मेथड। राउट टेबल में भी क्या रहता है, ये बोलता है टारगेट मुझे कहाँ जाना है, तो ये बोलता है टारगेट मुझे यहाँ पे जाना है। तो इसका जैसे टारगेट ये बोला तो इसका नेक्स्ट हॉप बोला जाता है इसको। तो राउट टेबल में क्या रहता है, डेस्टिनेशन रहता है और नेक्स्ट हॉप रहता है। तो जैसे ये बोलेगा कि मुझे जो डेस्टिनेशन है वो 35 इस पे जाना है, जो कि जो कि किससे मैच होगा, 000 से मैच होगा, मतलब इंटरनेट। यहाँ पे मैं फिल्टर लगा सकता हूँ कि सिर्फ डेबियन के सारे ये करके, बट 0 0 एक ऐसा अगर मैंने डेस्टिनेशन बनाया हूँ, विच मीन्स ये है मेरा सर्वर, राइट। ये 35 क्या हो रहा है, 0 में आ जाता है, तो उसका नेक्स्ट स्टॉप क्या रहेगा, नेट गेटवे रहेगा। तो नेट गेटवे ये है हमारा, ऐसा कुछ नाम दे देते तो वो वहाँ पे ये नेट गेटवे आ जाएगा कुछ आईडी के साथ में। तो राउट टेबल ऐसा बनता है। और इंटरव्यूज में तुमको पूछा था फायरवॉल कैसा रहता है, राउट टेबल कैसा बनाओगे, यूजर डिफाइंड राउट टेबल क्या रहता है। तो राउट टेबल में ये रहता है, तुमको एक डेस्टिनेशन बताना रहता है, उस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए तुम्हारा अगला हॉप क्या रहने वाला है। तो अब तुमको बीच में भी एक यहाँ पे हॉप रह सकता था, अगर कोई बीच में राउटर रहता तो तुम वो यहाँ आता था, मतलब 0 0 पे तुमको जाना है ना, तो पहले यहाँ पर आओ एक दूसरे राउटर पे, और फिर उस राउटर से वहां पर जाओ। तो ये जो इतना कॉम्प्लेक्स जो है नेटवर्किंग वाले टीम के लिए, बट एज अ डेवऑप्स हु जस्ट नीड टू नो द नेटवर्किंग, ये हम लोग आगे देखेंगे, हम लोग आगे देखेंगे भी, और मैं सब क्लाउड पे तुमको प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा एज अ लैब, ठीक है। तो वो आगे आने वाला है, तो जिसमें हम लोग देखेंगे। तो अभी जस्ट मैं आइडिया प्लांट करके रख दे रहा हूँ, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट फायरवॉल्स नेटवर्किंग, लेकिन उसको डीप डाइव जो है हम लोग आगे देखेंगे और एक्शन में देखेंगे। तो अभी इस तरीके से जाएगा, बट द प्रॉब्लम इसके, ये सर्वर जो हमारा है, इट हैज नो राउट, इसके पास में कोई राउट नहीं है जो उसको नेट के पास लेके जाएगा। तो वो इंटरनेट पे जा नहीं सकता। तो ये जो मतलब बहुत बिजनेस सुपर क्रिटिकल एप्लीकेशन रहती है, फॉर दैट एक्चुअली दैट इज हैपनिंग। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा फिर ऐसे केस के लिए, उसके लिए हमको खुद का प्राइवेट रेपोजिटरी सर्वर अंदर ही बनाना पड़ेगा। रेपो सर्वर यहीं पे बनाना पड़ेगा, हमारा खुद का रहेगा, प्राइवेट रेपोजिटरी रहेगी, ठीक है। और इस सर्वर को, जो हमारा ये सर्वर है, सर्वर 01, जिसको पैकेज इंस्टॉल करना है, तो इंस्टेड ऑफ कमिंग हियर ऑन डेबियन सर्वर, वो यहाँ पर आएगा। अब वो यहाँ पर कैसे आएगा, यहाँ पे उसका एड्रेस चेंज किया जाता है, तो उसको यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ये नाम बताने की बजाय उसको हम लोग ये सर्वर का लिंक बता देंगे नाम, ठीक है। तो वो हमेशा इस पे कनेक्ट करेगा वो पर्टिकुलर पैकेज डाउनलोड करने के लिए, क्योंकि ये सारे एक नेटवर्क में है, तो दे हैव द कनेक्टिविटी टू ईच अदर, राइट। वो रखेंगे हम लोग, तो वो ऐसा रहेगा। तो इसमें भी फिर यही आ जाएगा कि अगर ये तुम्हारा डेव सर्वर है तो इट विल गो बैक टू दिस जोन पे। तो डेव सर्वर रहेगा तो तुमको डेव जोन में एक बनाना पड़ेगा रिपोजिटरी सर्वर। प्रॉड सर्वर है तो जैसा डेव के लिए जो चीजें रहती है ना, हर चीजें प्रॉड के लिए भी बन जाती है, तो तुमको वो रखना पड़ता है, बिकॉज नेटवर्क ही डिफरेंस रहता है। देयर इज अ हार्ड लाइन ड्रॉ, मतलब एक यहाँ पे थिक लाइन ड्रॉ की गई है जो तुमको ब्लॉक करता है ये सारी चीजें, ठीक है। तो बेस्ड ऑन कौन सा एनवायरनमेंट है, अभी इसको ये एकदम 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 हाई लेवल बता रहा हूँ मैं, 10,000 20,000 मे बी 100,000 फीट बता रहा हूँ मैं अभी फिलहाल। इसको और जूम करोगे तो तुमको वो सारी चीजें दिखना स्टार्ट कर देगी। तो ये ऐसा कर सकते हैं इस केस में हम लोग, अब ये इसके भी टूल्स आते हैं। मैं एक तो सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड कर करके यहाँ पे लाके रखना पड़ेगा। समय पहले मुझे वेब सर्वर अपाची वगैरह का खुद का बनाना पड़ेगा। तो
ये रेपोजिटरी सर्वर का जो भी है ना, अब असाइनमेंट्स में आई हैव द इंटेंशन टू गिव इट टू यू गाइस, बट असाइनमेंट क्रिएट करना भी अगेन टाइम कंज्यूमिंग, एंड लाइक आई सेड यहाँ पे लोग वॉलंटियर में काम कर रहे हैं, नोबडी इज बीइंग पेड, सो आई कैन नॉट फोर्स एवरीवन कि क्रिएट करो, या मैं खुद भी इतना टाइम स्पेयर नहीं कर पा रहा हूँ। तो वी कैन क्रिएट, खुद का अपना बना सकते हैं एज असाइनमेंट में। तो उसके लिए तुमको अपाची का वेब सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा, और जो भी ये है आगे में भी एक देखूंगा मैं, मेरा तो इंटेंशन है बता देने की, एक करके देखेंगे लैब, दैट विल यू हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये बहुत कॉमन चीजें आ जाती है अपने ऑर्गेनाइजेशंस में। एज अ डेवऑप्स इंजीनियर जब तुम एज अ कुछ भी एडमिन काम करो, तुम यू आर बाउंड टू कम अक्रॉस। अगर तुम कोई एप्लीकेशन स्पेसिफिक कर रहे हो तब तो तुमको आना ही है, तुम डेटाबेस एडमिन काम कर रहे हो तो तुमको जो ओरेकल का डेटाबेस डाउनलोड करना है तुमको, तो ओरेकल के वो सर्वर पे रहेगा, उसको वहां से लाना पड़ेगा। डेबियन वाले नहीं रखेंगे ओरेकल का, डेबियन वाले रख रख के माई सीक्वल पोस्टग्रे रख सकते हैं वो लोग, लेकिन नॉट श्योर दे कीप दैट एज वेल। माई सीक्वल के लिए तुमको माई सीक्वल डेटाबेस के जो माई सीक्वल के सर्वर पे शायद जाना पड़ेगा, तो वो सारे तुमको यहाँ पे ला के खुद का बना सकते हो प्राइवेट में व्हेन यू डोंट हैव द एक्सेस। बट I would say 80% of the time, this is the way NAT is configured, that allows to connect to trusted sources rather than keeping it 000। मतलब NAT से सिर्फ ट्रस्टेड सोर्सेज पे ही जा सकते हैं। यहाँ पे एक और फिल्टर लगा सकते हैं हम लोग आउट गोइंग का, वो नेटवर्किंग टीम करेगी, उतनी कॉम्प्लेक्सिटी में हमको जाने की जरूरत नहीं, बट आइडिया के लिए तुम ऐसा समझो, ठीक है। तो हम लोग खुद का प्राइवेट ये भी बना सकते हैं, एंड इफ वी अगर हमने किया है तो उसकी एंट्री हम लोग यहाँ पे रख देंगे। जो भी हम लोग खुद का प्राइवेट सर्वर बनाएंगे उसकी एंट्री यहाँ पे रख लेंगे, ये मैं बता दूंगा। प्राइवेट सर्वर जो एक हम लोग इंस्टॉलेशन करके देख लेंगे। अगेन वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो अभी फिलहाल के लिए मैं कंसेप्चुअली आई वांट एवरीवन टू अंडरस्टैंड, और नेक्स्ट वीक में मैं तुमको ये करके बता दूंगा। अभी हम लोग दूसरा जो नॉर्मल पैकेज, क्योंकि अभी तक हमने नॉर्मल भी इंस्टॉलेशन नहीं देखा है, तो विल गो अहेड एंड सी दैट। तो मैं दो चीजें इंस्टॉल करता हूँ यहाँ पे। अगेन इसमें कमांड्स है बहुत सारे। अब ये कमांड समझने के लिए ना तुम यहाँ पर आ सकते हो। अगेन यू विल कम बैक टू यहाँ पर Ubuntu। इनका खुद का ही डॉक्यूमेंटेशन है। Ubuntu package। तो जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ ये सारी यहाँ पे भी लिखी हुई है, किस तरह से क्या क्या करना है। ऐप से तुमको कोई चीज इंस्टॉल करना था, देखिए ये लोग ने nmap पे किया, जो कल हमने उससे किया था। एंड रेपोजिटरी, इसमें ऐसा रहता है कि तुमको हमेशा रेपोजिटरी अपडेट करना पड़ता है बिफोर यू। जब भी हम लोग अपडेट बोलते हैं तो वो क्या कर लेता है, जो नया जो भी पैकेजेस अवेलेबल है वो अपने इंटरनल रेपोजिटरी खुद की अपडेट कर लेता है, तो हमारे पास में सारे लेटेस्ट पैकेजेस अवेलेबल हो जाते हैं जो यहाँ पर नहीं रहेंगे। तो हमेशा जो उबंटू में है वो करना रहता है। और यम में एक्चुअली दैट बेनिफिट, क्योंकि यम में जब भी करते हो ना तो वो खुद ही अपडेट भी कर देता है रेपोजिटरी को। तो यम में तुमको यू डोंट नीड टू नेसेसरीली एवरी टाइम डू यम अपडेट, बट यहाँ पे तुमको हर बार एक बार ऐप अपडेट मारना पड़ेगा, तब जाके तुम पैकेज इंस्टॉल करोगे। तो अगर मैं बोलता हूँ ऐप अपडेट तो वो अपडेट कर देगा, बट होगी मुझे। तो ये देखो वायर कैश में बोल रहा था ना, यहाँ पे सारे उठा उठा के ला के रख देता है। यहाँ पे क्या कर देता है, सब जमा करता है, क्योंकि वो टेम्पररी होल्ड करेगा कहीं पर, इंस्टॉल करेगा और फिर उसके बाद में उसको क्लीन कर देगा। तो वो भी क्लीन वो इमीडिएटली नहीं करता है, बिकॉज तुमने इंस्टॉल किया फिर से तुमको कल इंस्टॉल करना है, तो वो क्या करेगा, इस बार सर्वर पे नहीं जाएगा, कैश में से ही उठा लेगा कैश डायरेक्टरी। और वो महीना महीना में क्लीन होती रहती है, उसका भी रोटेशन का एक टाइम पीरियड रहता है कि इतने टाइम में उसको क्लीन कर दिया जाए, उतने टाइम में उसको क्लीन कर दिया जाए। तो अभी मुझे इस लोकेशन पे राइट करने की परमिशन नहीं है, तो इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, रिमूव कर रहा था एक्चुअली। तो अपडेट कर रहा हूँ, तो ये देखो जितने भी वहाँ पे अंदर में थे सारे साइट्स को वो जा रहा है सब। तो ये जो चार लिंक्स है, चारों लिंक्स पे गया हो, किसी एक पे मैं जाऊँ ना तो तुमको रिपोजिटरी सर्वर दिखता है, कैसे दिखता है। तो रिपोजिटरी सर्वर ये रहता है विच इज सेम एज हम लोग भी हमारा बना सकते हैं। तो ये कोई सा भी एक सर्वर रहेगा, ये मेरे ख्याल से ना ये लोग अपाची का यूज कर रहे होंगे, आई थिंक सो। तो हम वी कैन ऑल्सो डू दैट। सो अभी मैं एक काम करता हूँ, इंस्टॉल ही कर लेता हूँ ऐप।
इंस्टॉल अपाची। अब अपाची करता हूँ। अब इसके अंदर में क्या होगा, दूसरा काम होता है, मैं स्विच करता हूँ, बार-बार mistake करूंगा। तो बोला पैकेज हैज नो इंस्टॉलेशन कैंडिडेट, ये नाम से कोई पैकेज ही नहीं मिला उसको, और उसने सजेस्ट भी नहीं किया। तो अब ऐसा है कि यहाँ पे जो भी नाम उसका रखा हुआ है ना, वो नाम मुझे पता होना चाहिए। अब अपाची का नाम यहाँ पे क्या है मुझे पता है, लेकिन जस्ट बिकॉज आई वांट टू शो यू गाइस समथिंग, इसलिए मैंने कहा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन डू सर्च। तो जितने भी मतलब पैकेजेस अपाची वाले नाम से हैं सारे आ गए हैं। अभी इसमें से जो मुझे चाहिए ऊपर ऊपर में चाहिए, तो अभी इतनी बड़ी लिस्ट आ गई है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसको लेस में ले सकता हूँ। लेस क्या कर देगा, वो पूरा होल्ड करेगा और मुझे वो पैचिनेशन में दिखाएगा, मतलब पेज वाले फॉर्मेट में दिखा देगा। तो ये कर लिया उसने होल्ड। अब मुझे वो दिखा रहा है। अब मैं अप डाउन कर सकता हूँ इसके ऊपर आसानी से। तो यहाँ पे देखो, क्योंकि ए में ही थे बाकी सारे, तो ये अपाची क्या है, पैकेज का नाम है अपाची 2 नाम है। उसके बाद में ये सारी चीजें मैं दे सकता हूँ। तो अगर मैं जस्ट अपाची 2 बोलूंगा तो इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद में बिन है, डेटा है, अपाची डेव है अगर करना है, बट एक्चुअली आई एम इंटरेस्टेड इन दिस वन। तो दिस इज द वे वी कैन सर्च, राइट। और ये पैजिनेशन में मैं अब यहाँ पे सर्च भी मार सकता हूँ, जो भी मुझे सर्च मारना है। अगर मुझे डेव सर्च मारना है तो सर डेव मार लेता हूँ। क्यों प्रेस करूंगा तो बाहर निकल जाऊंगा, राइट। मैंने लेस से किया था, तो दैट इज ऑल्सो वेरी कॉमन वे टू डू इट। मैं अपाची 2 कर लेता हूँ, ठीक। तो इसमें देखो सब कर रहा है, जो भी फॉलोइंग एडिशनल पैकेज जो अपाची के लिए चाहिए हमको, सारे उसने कर लिया। एसएसएल सर्च चाहिए, ये सारी जो अलग अलग चीजें हमको चाहिए थी, सारे उसने ले लिया। अब इसको यस कर लेते हैं। अगर यही मैं वहां पे डैश वाई के साथ में पास करता था, जो मैंने अभी कमांड कौन सा रन किया हूँ, द कमांड विच आई एग्जीक्यूटेड इज दिस इंस्टॉल अपाची 2। अगर मैं डैश वाई ऐसा पास करता था तो मुझे यस नो पूछता ही नहीं था, वो अज्यूम कर लेता था। ठीक है, तो ये अज्यूम क्लियर रहता है। ठीक है, अपाची इंस्टॉल हो गया है। और इंस्टॉल होने के बाद में जो एक चीज हमको दिखाई देगी, वो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल दिखाई देगी। तो अपाची 2 की कॉन्फ़िगरेशन फाइल रही यहाँ पे। और इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में अब क्योंकि ये जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है वेब सर्वर के लिए यूज़ किया जाता है, तो अब मुझे सर्विस देखना है, इसकी सर्विस है या नहीं। तो सिस्टम सीटीएल का कमांड है, विल सी मोर अबाउट दिस आफ्टर। मतलब स्क्रिप्टिंग करते करते हम लोग इसको भी आगे देखेंगे, बिकॉज आई वांट टू स्टार्ट समथिंग फ्रॉम द ऑटोमेशन एंड देन मूव अवे फ्रॉम दिस टॉपिक, बिकॉज ये कुछ कॉमन चीजें रहेंगी जो हमको करना ही हमारा ब्रेड एंड बटर है, सर्विस। और जो जो हम लोग दूसरी चीजें देख रहे हैं प्रोसेस वगैरह का, नेटवर्क के कमांड्स का, तो वो हमको करना ही है टाइम एंड टाइम। अब पैकेज का नाम मुझे पता रहना चाहिए क्या है, तो अपाची 2। तो इट्स रनिंग एक्चुअली। तो अपाची 2 क्या है, रनिंग है, एक्टिव रनिंग बता रहा है। ठीक है, तो ये सर्वर मेरा स्टार्ट हो गया। अब सर्वर स्टार्ट हो गया, अब कौन से पोर्ट पे चल रहा है तो मुझे चेक करना है। तो आई कैन रन द नेक्स्ट स्टार्ट कमांड, राइट। मैंने बताया था कि अगर मुझे रनिंग पोर्ट चेक करने हैं, सर्विस कौन से पोर्ट पे लिसन कर रहा है, तो दैट इज दिस कमांड, लिसनिंग ऑन पोर्ट 80। ठीक है, तो अभी के केस में क्या है, मैं यहाँ पर हूँ और मैं ब्राउजर खोलूंगा। सॉरी, मेरा सर्वर जो है वो गूगल के नेटवर्क में है, और ब्राउजर मैं कहाँ पे खोलने वाला हूँ। तो सिनेरियो फॉर मी करंटली इज दिस, आई एम हियर एंड द सर्वर इज रनिंग हियर। ठीक है, सर्वर यहाँ पे रन हो रहा है अपाची। मैं यहाँ पे एसएसएच करके मैं कनेक्ट हो गया था मेरे लैपटॉप से। अब ब्राउजर जो है मैं मेरे लैपटॉप में यहाँ पर ओपन करने वाला हूँ। तो ब्राउजर में मैं कौन सा आईपी डालूंगा, पब्लिक आईपी डालूंगा इसका या प्राइवेट आईपी डालूंगा in order to access the web server? पब्लिक आईपी डालूंगा ना, सिंपल सा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे प्राइवेट, Yes. राइट, तो पब्लिक आईपी, क्योंकि प्राइवेट डालूंगा तो इसी सर्कल में इसी नेटवर्क में ढूंढ के मर जाएगा, वो बाहर कभी जाने ही वाला नहीं है। पब्लिक डालूंगा तभी वो बाहर जाएगा। और एक और है यहाँ पर कि ये जो फायरवॉल है यहाँ पे गूगल का है, तो ये फायरवॉल जो है मुझे करने वाला है। ठीक है, तो अब मैं, अभी ये फायरवॉल में क्या था, हमारा एसएसएच का रूल था। मैं ऑलरेडी एसएसएच, यहाँ फायरवॉल ने मुझे बोला है ठीक है एसएसएच है, कनेक्ट हो जाओ इसको। अब मैं ब्राउजर से आ रहा हूँ, बिकॉज ब्राउजर इज, मेरा क्लाइंट क्या था, मोबाइल एक्सएम क्लाइंट था।
SSH के लिए। और अब वेब सर्वर के लिए क्लाइंट क्या है मेरे पास, मेरा जो क्लाइंट है दैट क्लाइंट इज माय ब्राउजर। तो अब मैं ब्राउजर से कनेक्ट करने वाला हूँ, लेकिन अब जो फिलहाल के लिए एक सिचुएशन है, एक्चुअली आई थिंक ये नहीं रहेगा या रहेगा पता नहीं, बट देखते हैं हम लोग। बट वी हैव टू गेट दिस फायरवॉल। ठीक है, ये फायरवॉल मुझे लाना पड़ेगा तभी जाके मेरा काम होगा, बिकॉज मेरा वेब सर्वर यहाँ रन हो रहा है और मुझे यहाँ ब्राउजर से उसको एक्सेस करना है। ठीक है, तो अगेन ये डायरेक्ट नहीं था ये वाला कंसेप्ट जो नेट है, क्योंकि ये जो नेट है यहाँ पे उसको पाल कौन रहा है, मेरा आईएसपी पाल रहा है। तो यहाँ पर जब मैं जाऊंगा तो मेरा प्राइवेट आईपी नहीं रहेगा, इस फायरवॉल को मेरा नेट का आईपी दिखाई देगा। ठीक है, तो लेट्स सी, इसको कॉपी करता हूँ और ये ब्राउजर यहाँ पर है, इस पे एंटर करते हैं, पोर्ट देते हैं 80 बिकॉज 80 पे लिसन कर रहा हूँ। इतना टाइम लिया है, इसका मतलब ये मरेगा। दूसरा यहाँ पे एक और चीज मैं एग्जिट करता हूँ। कमांड क्या है, मैं एग्जिट करके खुद के वापस लैपटॉप पे आ जाता हूँ। ठीक है, आई एम ऑन माय लैपटॉप राइट नाउ। कमांड क्या है, पोर्ट को चेक करने के लिए nc इज द कमांड राइट, जो कमांड यूज होता है। और पोर्ट कौन सी है मेरी, 80 है। टेलनेट है, nc है। टेलनेट इज आउटडेटेड नॉट रिकमेंडेड। इतना टाइम किसी ने लिया है, इसका मतलब क्या एरर आने वाला है, टाइम आउट। क्या एरर आया, कनेक्शन टाइम आउट आ गया। कनेक्शन टाइम आउट का मतलब तुमको पता रहना चाहिए, सारे एरर मैसेजेस मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो नेटवर्क लेवल के जो बेसिक कनेक्शन टाइम आउट, कनेक्शन रिफ्यूज जो भी आते हैं। तो ब्राउजर ने मेरे को क्या दे दिया, कनेक्शन टाइम आउट दिया है, जिसका क्या मतलब है कि फायरवॉल ने इसको ब्लॉक किया है राइट। टाइम आउट का मतलब है फायरवॉल ब्लॉक कर रहा है। रिफ्यूज का मतलब क्या है, और भी चार पांच टाइप, चार डिफरेंट जो मैंने एरर, कॉमन एरर्स के टाइप्स बताए थे वो आते रहते हैं। So I'll have to get the firewall here. So let me quickly get that done. अभी for now you guys can ignore this part जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है? Let me run. चलिए इसे shortcut में मैं लंबे से क्यों जा रहा हूँ? Firewall rules. Firewall में we don't have any HTTP rule. तो मैं क्या करता हूँ, HTTP rule बनाता हूँ। I'm just gonna stick to the naming convention that they have provided here. तो इसको भी दे दिया। मुझे HTTP अलाउ करना है एंड सारी चीजें आई इग्नोर। टारगेट और इंस्टेंस इन द नेटवर्क रहेगा, क्योंकि सोर्स टारगेट देना रहता है। मेथड में अलाउ दे रहा हूँ, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। एंड टारगेट में मैं 0 0 0 0 0 देता हूँ बनाओ। तो ये क्या है, तुम भी एक्सेस कर सकते हो अभी मेरा वेब सर्वर। एंड पोर्ट में मैं देता हूँ जस्ट 80। टीसीपी पोर्ट अपना 80 मैंने दे दिया है। एंड जैसे कि रूल बनेगा आई शुड बी एबल टू एक्सेस दिस। अब फायरवॉल जो है ना हम लोग अच्छे से देखेंगे बाद में, ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दिस। जस्ट स्टेप फॉलो कर लेना इफ यू आर डूइंग द लैब। ओके, आई नीड टू गेट आउट ऑफ माय इसने ये यहाँ पे थोड़ा सा मिसलीडिंग है, कनेक्शन रिफ्यूज बोल रहा है, लेकिन ये कनेक्शन बिकॉज मैं WSL यूज कर रहा हूँ, WSL वर्चुअल रन हो रहा है विद इन द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो मिसलीडिंग मैसेज दे रहा है यहाँ पे। तो दिस इज एक्चुअली नॉट अ कनेक्शन रिफ्यूज, इट्स एक्चुअली इट्स अ कनेक्शन टाइम्ड आउट मैसेज। अगर मैं इसको आउटसाइड ऑफ वर्चुअल WSL के बाहर रन करूंगा, मोबा एक्सटर्म में राइट, मोबा एक्सटर्म इज डायरेक्टली रनिंग ऑन माय लैपटॉप, इसमें रन करूंगा तो ये बराबर अभी तो सक्सेस हो गया है क्योंकि फायरवॉल रूल आ गया है अभी। तो फायरवॉल रूल आने की वजह से सक्सेस हो रहा है यहाँ पर। एंड ये वेब सर्वर भी यहाँ पे मेरा चलेगा। पोर्ट 80 दे दूंगा, जो कि मुझे देने की जरूरत नहीं है बिकॉज बाय डिफॉल्ट जो पोर्ट है, देखो यहाँ पे पोर्ट नहीं लिया, ब्राउजर 80443 HTTP पोर्ट एंड HTTPS पोर्ट, ये दोनों के दोनों वो बाय डिफॉल्ट, हमको देने की जरूरत नहीं रहती है। तो इसलिए ये पोर्ट भी तुमको कौन सी पोर्ट रहती है डिफॉल्ट वाली, This one is unsecure port, right? 81. 80 इज अनसिक्योर राइट, वो बोल भी रहा है कि नॉट सिक्योर है। तो इसको क्या सिक्योर SSL लगाना है, तो SSL लगाएंगे वो
because that's not our intention of right now. तो मैं फिर से सर्वर पे कनेक्ट करता हूँ SSH. ठीक है. अब ये यहाँ पे ये हो गया. अब ये वेब सर्वर भी ऐसा ही है. अब इसमें क्या है, उबंटू नाम का एक है. अगर मैं यहाँ पर आके एक डायरेक्टरी बनाता हूँ इसका, ये यहाँ पे जो है ना www.html, इस लोकेशन पे ये index.html जो है ना वही पेज मुझे दिखा रहा है वहाँ पर. सो मैं कैट कर दूंगा ऐसा, तो ये देखो इस तरीके से. अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर जो है एक डायरेक्टरी बनाता हूँ. मेरा खुद का मैं सर्वर बनाता हूँ. मान लो मैंने उबंटू का सर्वर उबंटू डेबियन बना लेता हूँ. डेबियन मैं 2 डायरेक्टरी बनाता हूँ यहाँ पे, डेबियन सेंटोस. ठीक है, 2 डायरेक्टरी बन जाएगी इस तरीके से. और उसके बाद में क्या करता हूँ, दोनों में एक एक फाइल लिख देता हूँ. तो यहाँ पे पैकेज.टेक और यहाँ पर पैकेज.rpm. ये मैं देखो एक साथ कर रहा हूँ टाइम बचाने के लिए. तुम एक एक करके कर सकते हो. मैं बता दूंगा इनमें क्या हो रहा है. और मैं पर्पसली ये भी कर रहा हूँ ताकि तुम लोग को भी समझ में आए कि ऐसी भी चीजें होती है. ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 डायरेक्टरी बनाया, सेंटोस, डेबियन. और उस डायरेक्टरी में मैंने क्या किया है फिर नेक्स्ट, ये पैकेज.rpm बनाया वो जो कि सेंटोस में था. और यहाँ पे बनाया है पैकेज.dev. ठीक है, अब ये यहाँ पे आता हूँ एंड देन इफ आई डू तो देखो पैकेज.dev आ गया. अगर मेरा ये खुद का वेब, तो ये मेरा खुद का वेब सर्वर बन गया. आई जस्ट हैव टू मेक श्योर कि जिस तरीके से ये सारे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर रहता है ना वही करना. खुद का बन गया ना हमारा वेब सर्वर. मैं इन लोग को एक और बना सकता हूँ ऐसा. एमवी कर लेता हूँ ये लोग को. ये तो चले जाएगा. अब इसको रिपोजिटरी से लाना पड़ेगा मुझे. तो अब ये मेरा कंपनी का होगा तो मैं अपने तरीके से कैसा भी करके बना सकता हूँ. मेरी कंपनी का नाम डाल के बनाता हूँ. देखो यहाँ पे मेरे पास सेंटोस के पैकेज है, डेबियन के पैकेज है. तो खुद का रिपोजिटरी सर्वर बन गया है. तो अब रेपो इसमें क्या होगा, ये इस तरीके की एंट्री यहाँ पर आ जाएगी. अब मेरे इसके केस में क्या था, ये लोग के पास आईपी था और उस आईपी का होस्ट नेम बना हुआ था. हमारे पास में आईपी है लेकिन उस आईपी का होस्ट नेम नहीं रहेगा. तो मुझे यहाँ पर इसमें जो एंट्री ये फाइल थी, वो फाइल में मुझे जाके ये नाम देना पड़ेगा ऐसे. तो ये नाम मैं यहाँ पे ऐसा दे दूंगा sources.list में, तो अपना भी चल जाएगा वो काम. यस लुबना, यू हैव क्वेश्चन. Do you have a question or it's just accidental hand raise? सर आपने अंडरस्कोर पी लिखा था ना, आई डिडंट गेट दैट पॉइंट. अच्छा हाँ ये. हाँ हाँ. ओके, दिस इज टू क्रिएट अ पैरेंट डायरेक्टरी. लेकिन अगेन मेरा आंसर वही रहेगा कि तुम मैन पेज में जाके देखो भाई. क्योंकि जो कुछ वीडियो तो रिकॉर्ड हो रही है, बाद में तुम्हारे पास यू हैव एम्पल इनफ ऑफ टाइम. तो मेकडर करके जाके देख. हाँ मतलब ऐसी कुछ चीजें जो जो उसने वाई के लिए पूछा था, तो मैं मेरा आंसर वो था कि तुम मैन में जाके देखो. तो यहाँ पे वो बता रहा है कि डैश पी क्या करेगा. नो एरर इफ एग्जिस्टिंग, मेक पैरेंट डायरेक्टरी एज नीडेड. ब्लॉग्स हैं. हाँ ठीक है, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ नाउ. नाउ आई एम एड्रेसिंग टू एवरीवन. तो तुम्हारे क्वेश्चन से मैं बाकी लोग को आई रीट्रेड सेम थिंग. तुम पहले जाके उसको समझो और जो कमांड्स हमने कर दिए, मैं सिर्फ उसी कमांड में कुछ ऐसे मतलब जो चीज हमने देख ली है ना उसी का मैं एडवांस यूसेज तुमको बताऊंगा. अदरवाइज जो हमने नहीं किया है ना उसका मैं एकदम बेसिक यूसेज बताऊंगा. तो ये पर्पसली मैंने किया है. आई होप कि मेकडर से कोई कंफ्यूज नहीं हो रहा है यहाँ पर. मैंने एक ही कमांड में क्या कर लिया, और ये मैंने उस दिन भी बताया था कि मल्टीपल हम लोग ब्रेसेस एक्सपेंशन बोला जाता है इस मेथड को, जिससे हम लोग मल्टीपल चीजें कर सकते हैं. तो मैंने
एक ही कमांड रन करके मैंने इतने सारे पैकेजेस बना लिए, एक ही कमांड रन करके मैंने क्या किया, इसको भी इसमें मूव कर दिया है। तो ये भी और ये भी दोनों को मैंने यहाँ मूव कर दिया एक ही कमांड में। तुम 2 कमांड में कर सकते थे, पहले इसको इसमें मूव करो फिर इसको इसमें मूव करो। तो मैं सिर्फ एडवांस यूसेज, बिकॉज नाउ तुम्हारा ये रहेगा कि बेसिक आ गया और एडवांस की तरफ बढ़ना है हमको। इंटरमीडिएट में पढ़ो, ये सारे इंटरमीडिएट ही हैं, एडवांस तो इससे भी डेंजर रहते हैं। तो तो ये देखो, इस तरीके से वेब सर्वर हम हमारा खुद का बना सकते हैं, और खुद का वेब सर्वर बनाएंगे, पॉइंट करेंगे, अपडेट करेंगे, तो उसको बता देना है ये हमारा खुद का गोडाउन जैसा बना दिया हमने। अब इस गोडाउन में हम सारे सॉफ्टवेयर अगर ला के रख दूंगा तो बस सिर्फ ये ऐप को बताना है। ऐप को बताने के लिए किधर जाना है हमको, ये इधर, ये यहाँ पे उसको एंट्री दे देंगे तो वो बराबर वहाँ पे करेगा। तो कंपनी में अगर कस्टम बना रहे हैं हम लोग, कंपनी में क्या आगे हम लोग बहुत 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 अलग अलग ओकेजन्स पे विल हैव टू डू दैट। हम लोग बार बार ये करेंगे कि कस्टम रहेगा जो डेबियन या उबुंटू या सेंटोस या के रिपोजिटरी पे नहीं रहेगा। तो हमको जो भी टूल हम लोग यूज कर रहे हैं वो खुद भी रिपोजिटरी बना के पालेंगे सेम इसी तरीके से। बिकॉज अब समझ में आया ना रिपोजिटरी किस तरह से बनता है। अब रिपोजिटरी बन रहा है तो उसका एक ये रहता है, प्रॉपर देना पड़ता है एक्चुअली उसको, मतलब बराबर से डायरेक्टरी स्ट्रक्चर रहता है उसको किस तरह से बनाना है। जस्ट जाके मैं एक ऐसा डायरेक्टरी बना के डॉट डेप करके नहीं रख सकता हूँ। उसका एक ये रहता है, उसको एक मतलब प्रॉपर स्ट्रक्चर है, उसमें जाके उसको रखना रहता है। तो वो स्ट्रक्चर हमको समझ में आना चाहिए, ठीक है। और वो डॉक्यूमेंटेशन में है कि अगर रिपोजिटरी सर्वर बनाना है और एज अ लैब में दे दूंगा, बट इट इज एज सिंपल एज डूइंग दिस। तुम खुद का बना लो, तुम यहाँ पे मूवी होस्ट कर लो, वहाँ पे मूवी रखे रहो और डाउनलोड करो कहीं से भी, बिकॉज दैट्स व्हाट द पीपल आर डूइंग एक्चुअली। दे आर क्रिएटिंग देयर ओन सर्वर और उसको वॉल्यूम अटैच कर देते हैं स्टोरेज का। और जो FTP सर्वर रहते हैं जो फ्री में मूवीज डाउनलोड करते हैं, शोज डाउनलोड करते हैं, तो उस तरह से वो लोग करके ये एक्सेसिबल रहता है। तुमको अगर ये करना है तो दिस इज द ओनली द मेन रीजंस टू टेल यू गाइस कि ये ऐसा हो रहा है। और यू माइट बी हैविंग सम फेमिलियरिटी, जब कभी तुमने किया होगा, यू माइट हैव कम अक्रॉस इसमें। ठीक है, तो एक और जो है हम लोग क्विकली कवर कर लेते हैं, अनदर वे ऑफ इंस्टॉलिंग द पैकेज। ये तो एक इस तरीके से हो गया। अब कुछ टाइम पे ऐसा रहेगा कि लाइक फॉर टेराफॉर्म फॉर इंस्टेंस, मुझे टेराफॉर्म इंस्टॉल करना है। तो जो भी रहेगा, जो भी टूल हम लोग कर रहे हैं, वो टूल के डॉक्यूमेंटेशन पे पूरा इंस्ट्रक्शन दे देगा वो किस तरह से इंस्टॉल करना है उस चीज को। तो देखो ये टेराफॉर्म में क्या है, ये उनकी रिपोजिटरी दिया है। तो यहाँ पे अगर उबंटू है, डेबियन है, तो वो क्या बोल रहे हैं कि देखो ये हमारा ये है, तुम ये कमांड से कल से क्या करो, ये जो रिलीज हैशिकॉप इनकी ये की ऐड कर लो, जो की मैं बता रहा था वो वाली की। तो पहले हम लोग उनकी की ऐड कर लेंगे, ठीक है, ऐड हो गई उनकी की। नेक्स्ट में क्या है, उनकी जो ये ऐप ऐड रिपोजिटरी है, ये रिपोजिटरी हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो लोगों ने क्या कर रखा है, टेराफॉर्म का जो टूल ये लोगों ने टेराफॉर्म रखा हुआ है ये, और उसके बाद में मैं रिपोजिटरी अपडेट करूंगा और उसके बाद में इंस्टॉल कर लूंगा, राइट। क्योंकि ये टेराफॉर्म जो है ये डेबियन वाले जो है इनके सर्वर पे नहीं रख रहे, तो इसको इनका कौन बना रहा है, खुद का रिपोजिटरी सर्वर टेराफॉर्म वाले बना रहे हैं, बिकॉज उनको देना है। और ये जो ये मेथड से लोग पीपल हैव वेरी गुड फेमिलियरिटी विद दिस मेथड, तो उन्होंने वो तरीके से कवर किया। तुम यहाँ पर आओगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी किया उन्होंने कि रेड हैट पे किस तरह से होगा, सेंटोस पे, फेडोरा पे किस तरह से करना है, अमेजोन लिनक्स इज सेम एज द रेड हैट। और ये होम ब्रू मतलब तुम्हारा अगर मैक है तो इस पे किस तरह से करना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है। तो इफ यू वांट ऐड अ कस्टम रिपोजिटरी, हियर इज द ये, और तुम कर ये वाला करके देखो। मैं इसी में एक दूसरा तुमको बताता हूँ जिससे एक और चीज सामने आएगी हमारे। तो टेराफॉर्म ओल्डर वर्जन पे जाते हैं हम लोग, बिकॉज टेराफॉर्म ने ना ये रिसेंटली स्टार्ट किया, पहले टेराफॉर्म ऐसा नहीं देता था। टेराफॉर्म पहले क्या करता था, सिर्फ ये किसी बाइनरी दे देता था। तो मैं टेराफॉर्म का जो है पुराना वर्जन उठाता हूँ, ये वाला। और ये टेराफॉर्म हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, डार्विन मतलब मैक, FreeBSD है, लिनक्स है, OpenBSD, सोलारिस एंड विंडोज। हमको चाहिए लिनक्स का 64 वाला AMD, ठीक है, ये सबके लिए है। कोई सा भी रहेगा एक्चुअली, AMD नाम से दिया गया, बट यूज दिस फॉर मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये इसको डाउनलोड करना है तो क्या करूँगा मैं, wget से डाउनलोड कर सकता हूँ, राइट। तो wget लगाया, URL कॉपी किया था मैंने, डाउनलोड हो गया। ls करूँगा तो ये रहा मेरा पैकेज ऊपर में। अब इसको मुझे क्या करना है, अनजिप करना है। ये विंडोज वाला था तो अनजिप नहीं है मेरे पास,
तो gzip से तो नहीं कर सकता बिकॉज ये अनजिप है, तो जिप है तो मुझे अनजिप यूज करना पड़ेगा। अगर गनजिप बनजिप रहता तो मैं कर सकता था, वो जो मोस्ट ऑफ द इस पे रहेगा। तो अब मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा apt install unzip। एंड देन unzip और ये ले लिया। ठीक है, टेराफॉर्म आ गया। तो टेराफॉर्म बस यही है, इसमें ये बाइनरी रहता है, ये आ गया। अब टेराफॉर्म को मुझे रन करना है तो ये एज अ एग्जीक्यूटेबल फाइल है, इट्स नॉट अ स्क्रिप्ट, इट्स अ स्ट्रिप फाइल। ये लोग ने कमांड बना के दिया है जस्ट लाइक ls कमांड और एनी अदर कमांड। लेकिन मैं ये कमांड रन करता हूँ, लाइक ls कमांड मैंने रन किया, चल गया, ठीक है। अब मैं टेराफॉर्म मैंने लाया तो हूँ, अनजिप तो क्या हूँ, रन कर रहा हूँ तो नहीं चल रहा, क्या बोल रहा है, कमांड नॉट फाउंड। लेकिन मेरे पास टेराफॉर्म है, एक्चुअली टेराफॉर्म है, लेकिन अपने सिस्टम को नहीं पता टेराफॉर्म कहाँ पर है अभी, क्योंकि सिस्टम जो है ना एकदम स्पेसिफिक वे में काम करता है। अगर मैं इसको बताऊंगा कि टेराफॉर्म कहाँ पर है, लाइक pwd करते हैं पहले, इस तरीके से रन करते हैं /root एंड द टेराफॉर्म। टेराफॉर्म यहाँ पर स्क्रिप्ट है, इसको रन कर दिया तो देखो टेराफॉर्म रन हो गया। तो टेराफॉर्म का जो भी आउटपुट था उसका यूसेज आ गया, राइट। अगर मैं उसको वर्जन कर दूंगा तो टेराफॉर्म का वर्जन आ गया। तो मुझे हर बार क्या करना पड़ रहा है, उसका फुल पाथ बताना पड़ रहा है। बट मुझे ऐसा चाहिए जैसा ls रन हो रहा है, जैसा cd रन होता है, मेरे को मैं ls का जो विच ls करेंगे हम लोग, या टाइप -a करेंगे तो बता देगा वेदर इट्स अ बिल्ट इन और इट्स अ शेल, इट्स अ नॉर्मल कमांड। तो बोल रहा है कि देखो ऐसा है, तो हर बार ls करने के लिए मैं ऐसा थोड़ी रन कर रहा हूँ उसको पूरा पाथ देके, नहीं कर रहा हूँ मैं। यस राजिक। शहजाद भाई, आपने जो जिप फाइल डाउनलोड की है तो उसको हम टार से भी कर सकते हैं क्या अंदर, लाइक? नहीं, टार से हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो सब उस पे वो जिप है ना, तो उसको जिप लाना पड़ेगा। अगर वो गन जिप, बन जिप और या टार रहता तो हम लोग उसको टार कमांड से कर सकते थे अनटार। लेकिन ये जिप में हमको अनजिप से ही करना पड़ेगा उसका, वो क्योंकि विंडोज का एक्सटेंड कंप्रेशन है ना, ये कंप्रेस विंडोज वाला टूल है, तो उसको उसी से करना पड़ेगा। ओके, हम्म, ठीक है। तो अभी इसमें देखो क्या हो रहा है कि ls को मैं हर बार ऐसा फुल पाथ देके रन नहीं करता हूँ, रन हो जाता है। तो टेराफॉर्म मेरा वैसा रन नहीं हो रहा है, टेराफॉर्म को मुझे हर बार फुल पाथ देना पड़ रहा है तभी जाके रन हो रहा है। और अगर मैं करंट डायरेक्टरी में हूँ तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ टेराफॉर्म, और वो रन हो जाएगा। लेकिन द मोमेंट आई चेंज द डायरेक्टरी, राइट, मैं मेरे यूजर में आता हूँ, अब मैं ये मेरे यूजर में आ गया हूँ और मैं ऐसा ही रन करूंगा तो ये काम नहीं करने वाला है, राइट, क्योंकि वो बोलेगा ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ पर, और रूट में है हूँ तो वहाँ पे मुझे एक्सेस नहीं रहेगा। तो मुझे वहाँ पर एक्सेस नहीं रहेगा, तो इट्स नॉट अवेलेबल फॉर ऑल द यूजर। अगर कोई तुमको बोल रहा है कि भाई टेराफॉर्म इंस्टॉल करो, कोई डेवलपर बोल रहा है, या फिर टेराफॉर्म तो हमारा टूल है तो डेवलपर बोलेगा नहीं, बट जस्ट इन केस अगर कोई ऐसा टूल कोई तुमको बोल रहा है कि ये इंस्टॉल करो, और तुमने इंस्टॉल कर दिया लेकिन वो एक्सेसिबल तो है ही नहीं, यहाँ पे कोई यूजर एक्सेस ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे कंसेप्ट जो रहता है लिनक्स में, दैट इज द पाथ। मतलब एक सिंपल है, लिनक्स का जो यूटिलिटी है, जो भी हमको ls कमांड लाके दे रहा है उसको वो क्या करता है, एक जगह पे जाके स्कैन करता है, वो स्कैन करने वाला जो लोकेशन है दैट इज दिस वेरिएबल है बिल्ट इन पाथ। तो जब भी मैं उसको बोलता हूँ ls कमांड तो वो क्या करता है, सब में जाता है, इसमें गया वो एको कमांड का भी वही है, एको कमांड भी जो उसने ढूंढ के लाया ना, तो इस पाथ में जाके ढूंढता है कि यहाँ पर है क्या एको कमांड, फिर ये कोलन के बाद सेपरेटर है, यहाँ पर भी ढूंढता है यहाँ पर है क्या, फिर यहाँ भी ढूंढा, यहाँ भी ढूंढा, यहाँ भी ढूंढा, जहां पर उसको मिला वो प्रोग्राम, उसने वो प्रोग्राम को रन कर दिया। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे ना ऐसा, तो इसमें कुछ भी नहीं है फिलहाल, ये एम्प्टी पड़ा हुआ है, ये भी यूजर का होगा तो ये सारे नहीं रहेंगे बहुत करके, इसमें शायद कुछ कमांड्स होंगे हमारे पास स्टैंडर्ड बाइनरीज। ठीक है, तो जितने भी ये कमांड्स, ये सारे कमांड्स हैं ये जो रन हो रहा है। और टाइप ls किया था हमने, ls कहाँ पर था, ये बिन ls में था, तो देखो बिन यहाँ पर दिया हुआ, राइट, तो बिन में सारे कमांड्स रहेंगे हमारे, जो जो कमांड हम लोग यूज करते हैं ना सारे, मोस्ट ऑफ द बैश कमांड है यहाँ पर, cd कमांड हम लोग यूज कर रहे हैं, और df अभी तक यूज किया नहीं बट df भी है, ln कमांड यूज किया है, mv कमांड यूज किया है, नैनो है जो हम लोग यूज तो कर नहीं रहे हैं बट है। तो देखो सारे कमांड यहाँ पर है। तो जब भी, क्योंकि उसको पाथ में बताया गया है, तो अभी हमारे केस में क्या है, इट्स एक्चुअली मिसिंग इन द पाथ, वो पाथ में है नहीं टेराफॉर्म, इसलिए टेराफॉर्म जो कहाँ पर है, अभी टेराफॉर्म मेरे पास है ये पाथ में। तो इस पाथ वेरिएबल में अगर हम लोग देखेंगे ना, तो ये वाला जो पाथ है हमारा pwd /root ये मिसिंग है।
तो इसलिए जब भी मैं उसको बोलता हूँ ना, जब भी मैं शेल को बोलता हूँ कि मुझे टेराफॉर्म दे, तो शेल क्या कर रहा है यहाँ पर, सब जगह आगे देखता हो, इसमें है क्या टेराफॉर्म, इसमें है क्या, इसमें है क्या, इसमें है क्या, सब में उसने चेक किया और बोला कि टेराफॉर्म नाम का कमांड नॉट फाउंड। जब मैं ऐसा बोलता हूँ ना उसको, तो ये मैसेज प्रिंट करने से पहले उसने ये सारे डायरेक्टरीज स्कैन करके आ गया हूँ। तो अभी हमारा सोल्यूशन सिंपल है, एक तो ये एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी में टेराफॉर्म को मूव कर दिया जाए, या टेराफॉर्म जहां पर है उसको यहाँ पे आगे ऐड कर दिया जाए। दो चीज हम लोग कर सकते हैं, एक तो टेराफॉर्म को किसी एक डायरेक्टरी में जाके रख दो, या फिर टेराफॉर्म जहां पर भी है उसको इस डायरेक्टरी उसको इसके आगे कोलन लगा के ऐड कर दो। तो यहाँ पे दोनों चीज कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं और वो भी कर सकते हैं। ऐड करने के लिए हमको सिर्फ वो अपेंड का जो है ना ये कमांड चाहिए, और इसके लिए अगेन जो कल हमारा बैश आरसी का था, ये जो पाथ वाथ कहाँ से सेट हो रहा है, सब बैश आरसी से सेट हो रहा है। तो जो कल मैंने बैश आरसी का हमने डिस्कस किया कि यूजर स्पेसिफिक मैं यहाँ पे करंट सेशन के लिए कर सकता हूँ, मेरे खुद के यूजर के लिए कर सकता हूँ, सारे यूजर्स के लिए भी कर सकता हूँ। देयर आर अदर वेज, अगर मुझे पाथ अपेंड करना है तो अगर मुझे पाथ अपेंड नहीं करना था, इजीएस्ट वे कि जो भी एग्जिस्टिंग पाथ है ना उसमें सीधा उसको मूव कर दो। और जो यूजर लोकल बिन है ना, एक्चुअली वही पर्पस के लिए बना हुआ है कि कस्टम जो यूजर के जो लोकल्स रहेंगे सारे इसके अंदर मूव कर दो। तो अगर मैं एमवी करके या सीपी करके टेराफॉर्म को वहां मूव करता हूँ, ठीक है, टेराफॉर्म मूव हो गया वहां पर। अब मैं टेराफॉर्म करके रन करता हूँ, पहले इसको टैप दे देता हूँ जो कंप्लीट हो गया हो। इससे पहले तो कमांड ही नहीं था तो कंप्लीट ही नहीं हो रहा था, अब वो रन हो रहा है, राइट। तो बहुत सारे टाइम पे तुमको ऐसा रहेगा कि पूरा, अब टेराफॉर्म के केस में ऐसा था ना कि ये टेराफॉर्म ने ही उनका प्रोग्राम को कंपाइल वंपाइल करके यहाँ पर आर्टिफैक्ट है, ये आर्टिफैक्ट हमने डाउनलोड किया और उसको यहाँ पे मूव किया। टेराफॉर्म इंस्टॉलेशन 3 स्टेप, डाउनलोड, अनजिप, मूव, मूव टू द पाथ वेरिएबल। तो हमने पाथ वेरिएबल में इसको मूव कर दिया, दैट्स इट, ये हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। तो टेराफॉर्म का इंस्टॉलेशन 3 स्टेप्स है, ठीक है। एंड वन क्वेश्चन इज दैट हाँ, व्हेन अनजिप करते तभी हम लोग पाथ दे सकते हैं क्या डायरेक्टली, हम लोग को कहाँ मूव करना है उसको? राइट राइट, यस वी कैन गिव इट एज वेल। तो वो एडवांस यूसेज में चले जाओगे तुम कि मतलब, एंड एक्चुअली इसी तरीके से तुम्हारा थॉट प्रोसेस करना है कि किस तरह से मैं मेरा टाइम बचाऊं या काम बचाऊं, एक कमांड बचा दूं, ये करूं। तो तुम्हारा थॉट प्रोसेस ऐसी होना चाहिए कि इफिशिएंट करना है हमको चीजें तो पहले बेसिक यूसेज में करना है, एक एक कमांड करके। बिकॉज व्हेन यू डू द ऑटोमेशन, एक चीज देयर इज अ की कि तुम अपने दिमाग में सोचो, तुम यू शुड बी एबल टू इमेजिन कि क्या हुआ बैकएंड में। तो अभी तुमने एक बार मैनुअल, लाइक मिक्सर में मैंने क्या किया, ऑटोमेट में एक साथ 4-5 डायरेक्टरी बना दिए। तो लेकिन मुझे पता है कि कैसे एक एक डायरेक्टरी बनती है। तो जिप में भी मुझे पता था कि मैं जिप करके यहाँ पे अनजिप किया, तो मैं डायरेक्ट टारगेट पे भी उसको अनजिप कर सकता था सीधा जहाँ पे वो लोकेशन है। तो वो एडवांस यूसेज में हो जाएगा। तो तुमको पता रहना चाहिए था तुमको कि अच्छा ये ऐसा भी होता था, तो अच्छा ऐसा भी होगा, तो ये मेरा तो काम आसान हो रहा है। एक कमांड में मेरे तीनों काम हो गए, अनजिप भी हो गया, वो मूव भी हो गया, तो सारा मतलब दैट इज एक्चुअली मच बेटर। तो मैं वो करूँगा। तो हर चीज में है एडवांस यूसेज। अब हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं एंड देन स्लोली स्लोली एडवांस में जाएंगे। तो एडवांस में मतलब वही है कि प्रैक्टिस से जाएंगे हम लोग। तो टेराफॉर्म के केस में क्या था कि वो ऑलरेडी कंपाइल्ड था, वो उसके कंपाइल्ड वर्जन में था, तो इसलिए हमने सिर्फ बाइनरी किया। तो बाकी केसेस में ऐसा होगा कि कुछ अगर हम लोग कस्टम कर रहे हैं तो हमको कंपाइल ओपन सोर्स में बहुत करना पड़ेगा हमको आगे जाके। तो हम खुद ही डाउनलोड करेंगे, उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, और जो बाइनरी के वो पाथ को इधर हम लोग उसको पाथ में अपेंड करें या फिर हम लोग उसको डाल दें। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या करेंगे, वहां पे डालेंगे। और अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिसकी बहुत सारे टूल्स हैं, उसका खुद का एक बिन डायरेक्टरी होगा, तो हम लोग सिम लिंक बनाएंगे, लिंक बना के छोड़ देंगे सिर्फ। तो एज सुन एज ये पाथ में आ जाएगा ना, तो वो लिंक में क्योंकि शेल क्या कर रहा है, वो पाथ वेरिएबल में जाता है, पाथ वेरिएबल में हम लोग क्या कर देंगे, लिंक बना देंगे। तो शेल सारे पाथ वेरिएबल ढूंढता है वो, ठीक है। और पाथ वेरिएबल में हम लोग क्या कर देंगे, लाइक मेरी एप्लीकेशन होगी यहाँ पे, मैंने मेरी जो एप्लीकेशन है मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया OPT माई ऐप और बिन। और यहाँ पर जो है मेरे बहुत सारे कमांड्स है, मतलब माई ऐप LS, तो मेरी एप्लीकेशन का LS आएगा। माई ऐप कंपाइल, ऐसा दे दे रहा हूँ मैं जो भी अभी मुझे याद आ रहा है। तो ये सारे मेरे बाइनरीज होंगे, जो मेरे कमांड्स होंगे, लाइक LS जैसा कमांड रहेगा ये, लेकिन मेरे एप्लीकेशन का LS बताएगा मेरा, क्योंकि मैं डेवलपर हूँ, मैंने इस तरीके से उसको सारे बनाए। तो शेल में मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जो भी एग्जिस्टिंग पाथ होंगे उसकी लिंक बना दूंगा यहाँ पर ln से इंस्टेड ऑफ। तो ये बिन का पूरा लिंक रहेगा, तो इंस्टेड ऑफ एक एक कमांड को यहाँ पे MV या CP करने के बजाय आई कैन डू ln एज वेल, या फिर मैं सीधा इस पाथ में इसको अपेंड ही कर दूंगा सिंपली ऐसा।
OPT माय ऐप और बिल। तो ये जैसा उसमें दो पाथ थे तो अलग है, मैं लिंक बना लूँ, पाथ बना लूँ या उसको कॉपी कर दूँ, जस्ट द वे, क्योंकि तुमको समझ में आ गया कि अब शेल कैसा काम कर रहा हो, पाथ में जाके हमेशा ढूंढता है, तो बस हमको वो चीज पता, जैसे हमको अंडरस्टैंडिंग आ जाती है ना, फिर हम लोग उसको अपनी तरीके से कैसा भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो वो अंडरस्टैंडिंग हमको आनी चाहिए। ठीक है, तो आगे ये जो चीजें है ना आने आते रहेगी, ये चीजें इट वोंट स्टॉप हियर, इसलिए तुमको अपनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बना लो। जो एडवांस यूसेज है ना वो ऑटोमेटिक आएगा इफ यू डू दैट बाय योरसेल्फ, व्हिच इज बहुत अच्छी बात है, व्हिच आई वुड हाईली इनकरेज। और अगर नहीं करोगे तो बेसिक पे भी करोगे ना तो आगे, क्योंकि हमको बहुत सारी चीजें इंस्टॉल करनी है, तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ, आगे बहुत सारे टूल्स आने वाले हैं जो हमको करने पड़ेंगे। मॉनिटरिंग के टूल्स हैं, परफॉर्मेंस के टूल्स हैं, ऑटोमेशन के टूल्स हैं, तो एक 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 करके क्लाउड्स के टूल्स हम लोग करेंगे। तो सबका ये कंसेप्चुअली तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए यहाँ पर। अभी एक बार तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होगा तो ये करेंगे। जैसे कि हमने बताया था API, CLI एंड UI। अभी तक क्लाउड को मैंने UI से एक्सेस किया है, आगे जाके हम लोग क्लाउड को CLI से एक्सेस करेंगे। तो CLI के करने के लिए CLI के सारे कमांड चाहिए मुझे। अब वो सारे कमांड लाने के लिए सेम कंसेप्ट रहेगा। अब अगर मुझे गूगल क्लाउड का CLI यूज करना है तो उसका भी रिपोजिटरी सर्वर रहना चाहिए जहाँ से मैं वो डाउनलोड करूंगा, तो गूगल पालेगा उसको। AWS रहेगा तो AWS पालेगा, अजूर के अजूर करेगा। फिर वो कमांड से भी हम लोग कमांड को पाथ में ऐड करेंगे। क्योंकि अभी तो जैसा ये है ना, ज्यादातर लोगों ने ऐसे ही कर दिया, जो टेराफॉर्म यहाँ पे कर रहे हैं ना, तो ये तरीके में क्या अगर हम लोग करते हैं ना तो एपगेट सब कर दे रहा है हमारे लिए काम। ये इंस्टॉल कर देगा, उसको प्रॉपर लोकेशन पे रख देगा, उसको पाथ वेरिएबल में भी डाल देगा, तो हम लोग बस ये इंस्टॉल करेंगे एंड देन वी आर गुड टू गो। दैट इज द बेनिफिट ऑफ द पैकेज मैनेजर। पैकेज मैनेजर के अलावा करोगे तो तुमको बहुत सारी चीजें करनी पड़ जाती है, तो वो सारी चीजें है, इसलिए recommended is package manager. If you don't have that, then you try to create your own package manager way, मतलब अपना खुद का repository वगैरह बना के। और अगर वो भी नहीं है तो फिर source code से करो, मतलब it's all about कहाँ पे कितना effort जा रहा है तुमको। You just have to calculate the effort and which one is expensive and which one is less expensive. ठीक है, तो आई गेस द ओनली टॉपिक रिमेन सर्विस, बट हम लोग वो स्क्रिप्टिंग के साथ में स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीक हम लोग स्क्रिप्टिंग के साथ में बाकी चीजें भी अभी आगे लेते बढ़ते रहेंगे। ठीक, तो जो भी चीजें हमने किया है वो रहेगी, और स्क्रिप्टिंग में आई वुड इनकरेज बहुत ज्यादा प्रैक्टिस लगेगी आगे। अभी तक जितने भी किया है ना, पहले उसको तो फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करो तुम्हारा, और यही चीजें रिपीट होगी। बस दूसरे हमको चीजें करनी पड़ेंगी, बट कंसेप्चुअली तुमको चीजें समझ में आना चाहिए, चाहे वो रेड हैट हो या डेबियन हो। आगे जाके अल्पाइन आएगा, तो अल्पाइन में भी वही कंसेप्ट रहने वाला है, क्योंकि डॉकर में जो कंटेनर में चलता है ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज अल्पाइन। तो उधर चलते हैं, तो वो आगे जाके देखेंगे हम। बता कैसे करना। ओके ठीक है, लेट्स कंक्लूड द मीटिंग टुडे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीक। थैंक यू एवरीवन। धन्यवाद।